और Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay. Is my screen visible to all? yes sir, it Yes, is sir. visible. Okay. So in the last class, we worked upon data structures. I think indexing was done, slicing also, backward, forward. Okay. Any issue in the indexing, backward, forward, how to just do the slicing? Any doubt? So now come to the part which is nested list. So that's it. हमने last time work किया था कि how to just create the list by the help of just calling the square braces, or I can say by just calling the list function. ठीक, उसके help से हम क्या कर सकते हैं, list create कर सकते हैं. There's a backward slicing also. Let's suppose if I want to just fetch some elements in the forward direction, then by the help of just do forward, and I want to do just in the reverse direction, do by the help of backward slicing. Now come to the part which is nested. So what's the meaning of the nested? We will start to understand. So let's suppose मेरे पास एक list है, and in the list there are some elements A, B, C, D. ठीक है. But in this A, B, C, D, I want to just make another list like D, E, F again. So by the help of just creating a list into the another list, it is called as nested part. मैं क्या करूँ, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट दे रहा हूँ, यानी एक कलेक्शन के अंदर आई एम जस्ट क्रिएटिंग अनदर कलेक्शन. सो डेफिनेटली if I'm just writing my elements individually, then there is no issue. But if I want to write my elements maybe in a group, just like E, F, G, so definitely I have to just pass into a collection. So I can pass this collection into a collection also. So I call it as a nested. यानी अगर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट में क्रिएट करता हूँ, I call it as a nested list. So here you can see there's a N, A, M, there's some alphabets. And in this 1 2 3, I'm just passing a collection of my numerical value, which is 1 2 3. Then Abhi and the Nitin are just like my string, which is collection of words. So definitely you can understand this is a collection of words, and this is my nested part, which is my list. Let's see the indexing of this. So let's suppose Manika, okay, I have to just run this. This is my L variable में assign किया. Now let's see अब इसका indexing देखते हैं कि indexing कैसे करते हैं. So I call it L
at the 0 index, then you can see the element at the 0 index is n, and my list is present at third index, so I call it 1 2 3. तो थर्ड इंडेक्स पे यानी मेरे पास पूरा कलेक्शन है, मींस व्हिच इज प्रेजेंट एट माय कलेक्शन, सॉरी माय लिस्ट इज प्रेजेंट एट माय थर्ड इंडेक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग 1 2 3. But I want to just go into the nested part also. How may I do it? In the same way what we had done earlier, like n a m and then 1 2 3. अगेन इट्स अ कलेक्शन, तो ये मेरा जो एड्रेस दे रहा है, मींस मैंने कहा ओके थर्ड इंडेक्स पे जाओ, वहां पे मुझे एलिमेंट दे दो, बट इट इज इटसेल्फ अ कलेक्शन, तो उसने मुझे 1 2 3 दे दिया. अब इस कलेक्शन के अंदर भी मुझे पेनिट्रेट करना है, तो अगेन मींस L3 इंडेक्स पे मेरा एक लिस्ट है, देन 0 1 and 2. So means that if I want to fetch the value which is present in this collection, then I have to just call their indexes respectively. So 1 means 3 is allocating for this index and 1 is allocating for this value, means I get the output which is 2. यानी मुझे लिस्ट के अंदर भी एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंदर मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो मैं कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? उसके कलेक्शन की रेस्पेक्टिव वैल्यू देख के. तो लेट्स सी, मैंने कहा ओके थर्ड इंडेक्स पे जाओ, थर्ड इंडेक्स पे मेरा कलेक्शन है, देन वो जो कलेक्शन है उसका मुझे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो ठीक है उसने मुझे एलिमेंट दे दिया. नाउ कम टू द पार्ट, क्या मैं गया ओके L is 4, इट इज शोइंग कलेक्शन ऑफ माय अल्फाबेट्स, तो क्या मैं इसका इंडेक्सिंग कर सकता हूँ? तो मैंने कहा ओके दिस इज आल्सो कलेक्शन A B H I, L0 L1 L2, 4 इंडेक्स पे A B H I, ओके जस्ट आई कॉल इट 0 देन A. गॉट इट? द रीजन इज बिहाइंड दैट, मैंने जैसे पहले बताया था कि स्ट्रिंग इज जस्ट ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ योर एलिमेंट. जब हमने देखा था LIST को कॉल करके, तो उसने क्या किया था? अनपैक किया था. किसको? मेरे कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, जो मुझे पता चल रहा है कि मेरे लिस्ट के अंदर there is an individual elements, there is a collection of the numerical values, and there is a collection of alphabets, maybe just you can say the names Abhi and the Nitin. Similarly आप उसके एलिमेंट्स को भी फैच कर सकते हो. तो मैंने कहा ठीक है थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास नेस्टेड पार्ट है विच इज अ नेस्टेड लिस्ट, बट अभी एंड नितिन आर नॉट कॉल इट एज अ नेस्टेड लिस्ट. I can call it as a strings are present in my list. So it doesn't matter, you are just passing individual elements, you are passing just collection of your numerical values which is in the list, maybe you are just passing any kind of data type is in the list. That's the beauty of the list. Got it everyone? So how to fetch the value which is present in the part of the nested in itself in the list, how to fetch it the value of that particular part. Got it everyone? Anyone having any doubt in this part? क्या नेस्टेड लिस्ट क्या है, कैसे हमें उससे फैच करना है उसके? अगर मेरे पास कोई कलेक्शन है एक लिस्ट के अंदर, देन इफ आई वांट टू जस्ट आइटरेट वन बाय वन, देन हाउ टू डू इट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? इज इट क्लियर टू? ओके ग्रेट. देन इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? 139 क्या आंसर आएगा मेरे पास? No need to just tell on the podcast, just write down your answer in the chat or in the private mode. Yes, 139 and 140 is, sorry, not 140. Yes, now ये क्या देगा मुझे? 139 and 140 क्या देगा? Yes, everyone. Am I audible? Great, मुस्कान. Good, very good. वो मुझे एरर का नेम भी चाहिए. Let's suppose if I'm just passing that particular code to my list, then great, good. Okay, मेरे दोनों आंसर से great. Ritika, good. No. What? Yes. Just think about the first one. It's line number 139. It's -3 -2. Ritika. Again, you have to think. Which one? Anshita also. Anshita and Ritika. Anshita, you have to think both the answers. There's a subtle mistake in your answers. Ritika, got it? Yes or no? There's a mistake in your first answer, which is line number 139. I'm trying to see it.
एवरीवन, मुझे सबके आंसर चाहिए फास्ट, जस्ट डू, इट्स वेरी इजी। जब हम लूप्स पे जाएंगे मे बी इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, so just try to understand what's the concept of going on. Okay, let's see, great, good. So definitely it's 3 minus 3 means that I'm just calling my negative indexing. So -1, -2 and -3. -3 index is this one, then again is -1, -2 and this is -3. But if I want to do in the forward means that I will start from 0, but if I'm just calling with the negative indexing, there is no need to worry about the -1 values, which is sorry, and -1 values. You have to call -1, -2 and -3. Got it? It's simple. So you just call it these things. Line number 139. Sorry, got it? It's, and again it's a 140. So means that you're just calling in the -3. Firstly, my cursor or my compiler will go to the -3 index, which is nested part, and then you just call the 3 index. It is out of range in this particular part. Sorry, well, so list index out of range. Got it? It's simple. So you have to just, no need to just cram these kind of codes. You have to just, maybe I can say, inculcated these kind of concepts in your mind. When you just inculcate. Yes, so Hello, sir. Sir, my answer was correct, sir. 2. Hello. okay, wait, I have to check. And let's suppose if you have any query, then just firstly raise your hand. It's really good for me. There it is. Yes, correct. Okay, sir. So is 140 is again list out of index. So that this is the part of the nested. कैसे हमें nested part पे work करना है and कैसे हम उसकी value citate कर सकते हैं. Now the part which is mutability is very very important. So what is the meaning of the mutability? Let's just have to understand क्या है ये mutability. So let's suppose मेरे पास एक list था and in the list I have some elements A, B, C and then D. Or no, it's E. Let's suppose. So A, B, E, A, B, C and E. But maybe I made a pitfall. I have to write D, but due to pitfall, I just written E over there. Then I want to just correct it. How may I do it? It's a 0, 1, 1 index, 2 index, and it's a 3 index. So I call it 3 index pe jao, and you have to just mutable. You have to substitute that value. Substitute means that the replacement of this value. So means that I want to replace this value with my D string, or I can say it's a D character. I want to substitute क्योंकि E गलती से मेरे पास आ गया. So that's the beauty of the list is that, let's suppose if you have a collection and you want to just replace the values which is present in the list, you can do it. That's known as mutability. यानी आप क्या कर सकते हो, उसे change कर सकते हो, mutable कर सकते हो. You can just manipulate it, the values which is present in the list, whatever you want, you can do it. So that's the beauty of the list. So list is a mutability. So just see this. This is just, maybe I can call it as 4 index. If 4 is abhi. So now you can see the value is substituted, which is 2. So पहले अभी था, अब 2 हो गया. That is known as mutability. So generally you have to just maybe आप इसे ध्यान रखो बस. No need to just again cram these things. क्या mutability क्या है? Less is a mutable. You can substitute any index value with the any respective value. जो आप चाहते हो वो कर सकते हो. So this is all about the kind of, I can say, the core part. Let's suppose if I want to work on the indexing, slicing, backward, forward kind of things, if one how to work on the nested part. Let's suppose their collection in the list, there is a nested list, then how to just fetch the value which is present in the nested part. You just do it. And the mutability, the concept. Now come to the part which is the scripting. So again, I maybe in the beginning, I can say when the class were used at that time, तो मैंने आपको बताया कि Python is just a combination of the code and the scripting part, means the modulation and the scripting. So now come to the scripting part. क्या अब हमारे पास कुछ functions हैं, हम उसके through भी operations कर सकते हैं. तो let's see मेरे पास क्या है. There is a list. In the list there are some elements. In the console part आप देख सकते हो n, a, m, there's a 1, 2, 3, 2 and Nitin. ठीक है, these are the elements which is present in my list. And if you want to see the length of my element, कोई length बताएगा? Anyone? Length क्या है मेरे list का? What's the length of my list? L. Great, good. So yes, you have to write down your answer in the chat board. No need to just come on the podcast.
ठीक है, तो डेफिनेटली जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मेरे पास क्या है, मेरा लिस्ट है। नाउ कम टू द पार्ट विच इज लाइन नंबर 52. देयर इज अ फंक्शन हुज नेम इज अपेंड. अभी अपेंड का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड. लेट्स सपोज मेरे पास लिस्ट थी ए बी सी डी ई, बट आई वांट टू ऐड सम एलिमेंट्स. ठीक है, म्यूटेबिलिटी इज जस्ट ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन. आपके पास ई था, ठीक है, बट उसे सब्स्टिट्यूट किया आपने डी से, तो आपने रिप्लेसमेंट किया. बट आई वांट टू ऐड सम एलिमेंट्स इन माय लिस्ट. हाउ मे आई डू इट? बाय द हेल्प ऑफ जस्ट कॉलिंग द फंक्शन व्हिच इज अपेंड. तो अपेंड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो. किसमें? लिस्ट पे. बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन क्या है? जब वो अपेंड करेगा वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे अपेंड करेगा, यानी ए बी सी डी, एंड आई वांट टू ऐड E in this particular list. How may I do it? By the help of append. And the beauty of the append, or you can say the particular disadvantage also, if you are using append, it means you are adding any element at the last index of the list. तो हमेशा वो किस पे करेगा? लास्ट इंडेक्स पे ही आपका एलिमेंट को अपेंड करेगा. लेट्स सी, देखते हैं. मेरे पास लिस्ट था L, ठीक है, देन मैंने कहा 10 को अपेंड कर दो, ऐड कर दो. देन यू कैन सी 10 कौन से इंडेक्स पे है? मेरे लास्ट 10 पे आया, लास्ट इंडेक्स पे. बट नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या अगर मुझे अपेंड करना है तो कैन मैं क्या एक एक वैल्यू को अपेंड करूंगा? जस्ट लाइक आई हैव टू ऐड वन वैल्यू एंड देन अगेन जस्ट run this code and again add another value and then again run this code. Can I just passing my values in the form of 10, 20, 30? Can I give some 2 or 3 values? Maybe append is able to just add all the values in my list. So let's see. In line number 154, I just passed that argument, which is L dot append 10, not 10, 10 already added. So I just pass it 30. So I want to add two values, 30 and 20 in my list L. मैं अपने list L में दो values को ऐड करना चाहता हूँ. तो देखते हैं. Let's see. मैंने उसे ऐड किया तो ये मेरा एक क्या आता है, एरर आता है. एंड द एरर इज दैट append takes exactly one argument to given. Means क्या मतलब हुआ इसका? क्या है मतलब? What's the meaning of this error? सर ये ओनली एक ही आर्गुमेंट ले सकता है जो अपेंड लास्ट इंडेक्स में ये करेगा. Okay. एक से ज्यादा नहीं ले सकता. तो मीन्स इज दैट ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट लेगा. बट मैंने यहाँ पे क्या किया, दो एलिमेंट दिया उसे. यानी ये जो अपेंड फंक्शन है, जो उसके पैरेंथेसिस में, वहां पे मैं सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ. हमने ये एरर देखा था पहले भी जब हम लिस्ट पे वर्क करे थे, LIST जब फंक्शन पे वर्क करे थे. तो ठीक है, तो मैंने कहा ओके, अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ 20 एंड देन 30. ठीक है, ये कर सकता हूँ. आई कैन पास दीज टू वैल्यूज, क्योंकि अगर मैं 20 30 लिखूंगा तो डेफिनेटली वो एक डिफॉल्ट उसका डेटा स्ट्रक्चर करेगा. बट वी आर वर्किंग ऑन लिस्ट, सो डेफिनेटली आई हैव टू पास दीज टू वैल्यूज इनटू द लिस्ट. सो आई कैन पास. ठीक है, मैंने इसे बी में पास करा एंड देन आई कॉल इट बी. बी को अपेंड कर दो जो भी वैल्यूज है, देन आई कॉल इट. देन यू कैन सी उसने क्या किया, एक नेस्टेड लिस्ट बना दी. यानी इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग these two values at their respective index, what he had done, just made a list, nested list inside a list. So that's a problem for me. Means is that append सिर्फ कब यूजफुल है, जब मैं वन बाय वन वैल्यूज को अपेंड कराना चाहता हूँ, then you can do it. Otherwise you won't able to do it. Collection of elements, if you really want to do, then you have to use another function that is called as extend. Let's see. समझ में है what's the advantage and what's the disadvantage of this append function, everyone? ठीक है, कैसे यूज करना. append means that if you want to add any value at the last index of the list, then you can use this append one. But if you want to just add more than two values or more than one values, if you want to add, then definitely there's a problem with the append. Let's suppose मैंने कहा okay, there's the same thing in the line number 160. There are two names, Jyoti and Vivek, I want to add. Then again it's given same error which is 2 given, क्योंकि मुझे एक वैल्यू अगर मैं लेट्स सपोज ज्योति देता हूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. ठीक है, तो आ सकता है. बट नाउ सी, क्या मुझे अगर वैल्यूज देना है 2 मोर देन 2, तो देन हाउ टू डू इट? सिंपली एक्सटेंड. सो आई जस्ट पास दैट ज्योति एंड विवेक इन द वेरिएबल ए. ठीक है, सिंपल. मैंने एक वेरिएबल पास किया, उसके अंदर में नेम्स हैं ज्योति एंड विवेक. आई जस्ट कॉल इट that L dot extend A. Yani L dot extend A means here that I want to add these two names in my list L. Now you can see
ज्योति एंड विवेक, गॉट इट। तो मेरे पास ज्योति एंड विवेक मेरे पास, यानी बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड मैं क्या कर सकता हूँ, कितने भी नेम्स ऐड कर सकते हो। यू हैव टू पास योर लिस्ट, मे बी द कलेक्शन ऑफ नेम्स, देन you have to call the function extend. You can just add number of variables, not sorry, number of elements you can add into the list. It doesn't matter you just want to pass 2 names, 3 names, it's just a collection of names, maybe 5 to 10. If you want to add at a one time into a list, then by the help of just calling extend you can add it. यानी extend से आप simply 5 to 10 names भी accept कर सकते हो. The only restriction is that with the extend is that you have to just make a variable, otherwise there is a problem again with this. Got it? Let's suppose मैंने कहा okay, क्या मैं अगर ऐसे करूं, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, मींस एक्सटेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, मुझे एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट ही उसे देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने कहा ओके, मैं क्या करता हूँ, ये अभी हम कर ही रहे थे, मैंने कहा ठीक है, इसे मैं एक लिस्ट में कंसीडर कर देता हूँ, एक आर्गुमेंट बन जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. So again, there is no problem. You can just pass these kind of collection into the extend also at a one time, or you just passing that collection by the help of just creating a variable and pass that variable into an extend function. Then you can add any number of elements into a list. Got it? Everyone, yes or no? What's the difference between append and extend? Got it? Yeah, definitely. There is no restriction with the extend one. Got it? So that's a beauty. But again, now come to the part which is line number 171. I want to add, ठीक है, मेरे पास अभी ऊपर ज्योति नेम था, तो by the help of append simply I added. There is no need to just worry about the thing. Can I do the same thing by the help of just line number 171? If I want to add Ritesh, can I do the same thing in the extend one? Yes or no? यानी मेरे पास लाइन अभी मैंने ज्योति ऐड किया, अपेंड से हो गया, बट मेरे पे 2 और 3 कलेक्शन की नेम्स हैं, तो मैं नहीं कर सकता, वो एक नेस्टेड पार्ट क्रिएट कर देगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सटेंड से यूज कर लिया। बट नाउ मेरे पास एक सिंगल नेम है विच इज रितेश, आई वांट टू ऐड दिस नेम इनटू माय लिस्ट एल, कैन आई डू इट? यस और नो? Yes, sir. ओके, एनीवन एल्स? Pardon the question, sir. क्वेश्चन इज दैट क्या अभी हमने अपेंड फंक्शन से ज्योति को ऐड किया था लिस्ट में, है ना, तो वो हो गया ऐड उसके इंडेक्स पे। एक्सटेंड पे हमने देखा था, ब्यूटी ऑफ द एक्सटेंड इज दैट क्या आई वांट टू ऐड मोर देन वन नेम्स और मोर देन वन एलिमेंट्स इनटू माय लिस्ट, देन कैन आई डू इट? यस, डेफिनेटली आई विल डू इट। बट इन द लाइन नंबर 171 आई वांट टू ऐड Ritesh into my list L by the help of extend, not append. Can I do it the same? Yes, By sir. the help of extend. Okay, okay. Everyone, yes? Just stick with the concept. अगर आप concept, please just wait for a while. Concept समझो, यानी extend क्या कर रहा है? Extend ने क्या किया, जो आपने collection दिया, पहले उसको unpack किया, एंड देन अनपैक करने के बाद जो एलिमेंट्स आए 10, 20, 45, फिर उनको ऐड किया। रितेश इज जस्ट ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ योर अल्फाबेट्स, मीन्स इज दैट जैसे हमने लिस्ट में देखा था, व्हेन आई जस्ट कॉल इट द फंक्शन लिस्ट, तो वो क्या कर रहा था, रितेश अगर मैंने ईशांक दिया तो वो ईशांक को अनपैक कर देगा, यानी ESHANK कर देगा। Similarly, extend is also working the same, means that firstly it unpack the collection, when the collection is unpacked, and then add all the elements in my list. Now let's see in line number 171, you can see there Ritesh, and here you can see RITESH. So there's a concept behind the extend thing is that when you're using extend, जब आप extend use कर रहे हो और आप एक collection दे रहे हो, किसको collection दे रहे हो? अपने list को। So let's suppose I'm just wait. ठीक है, मैंने कहा l डॉट एक्सटेंड, क्या करो एक्सटेंड, लेट्स सपोज EFG, ठीक है, मैं एक्सटेंड, तो अभी एक्सटेंड क्या करेगा, सबसे पहले इसे अनपैक करेगा, एंड देन अनपैक करने के बाद ये लिस्ट में ऐड करेगा।
ठीक है, यानी ये पहले अनपैक किया, कलेक्शन था ना, कलेक्शन मींस देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, इन द स्क्वायर ब्रैकेट देयर आर 3 एलिमेंट्स E F G. So if I'm just calling action means that firstly unpack my collection, then if my collection is unpacked I'll get my value which is E F G and then simply add into my list L. और अगर मैंने इसे कहा प्लीज stay to mute, मैंने कहा ओके यू हैव टू ऐड ईशांक. नाउ ईशांक इज आल्सो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, यानी ये क्या है ESHANK. अगर मैं यहाँ पे इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो आई कैन एड इट ईशांक डायरेक्टली, बिकॉज ये किसे अनपैक करेगा, इसे अनपैक करेगा. ठीक है, इसके बाद इसे यानी फर्स्ट आइट्रेट में एक ही कलेक्शन को अनपैक करेगा, दो कलेक्शन को अनपैक नहीं कर सकता. देन यू कैन सिंपली एडिट ईशांक. बट अगर मैंने यहाँ पे इसे ये नहीं दिया मीन्स दैट आई एम जस्ट सिंपली गिविंग दैट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो सिंपली वो क्या करेगा, इसे अनपैक करेगा, तो ESH सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, अनपैक्ड हो जाएगा. गॉट इट एवरीवन, यस और नो? अपेंड एंड एक्सटेंड. यस मुस्कान. So, sir, you're basically saying that if we want to add one element, then we will use append, and if we want to, Your voice is cracking. I'm saying that if we want to add one element, Again. hello, Yes, you are audible, but your voice is cracking incessantly. okay, I was saying that if we want to add one element, then we will use append, and if we want to add multiple elements, then we will use extend, right? Yeah, but the thing is that you have to pass that particular argument. Let's suppose this is action, I want to add 10, and let's suppose this is my list. Wait, sorry, not this one, I just call it this one again, this one. So this is just on my list, and in my list there N, A, M, 1, 2, 3 and Abhi and Nitin. So we know append में मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ. मैंने कहा ओके एक्सटेंड में मुझे वैल्यू दे दो which is 10. Then it's give that error list object is not iterable. Because बता सकते हो ये एरर क्यों दे रहे हैं? Anyone? Sir, because it cannot be unpacked. Means that 10 is just an integer, you cannot be unpack this value, so that's why it's giving that error. Okay, I just simply packed it into a list. Got it? So that's a beauty of the extend function, means that if you want to add more than one element, means that you have to pass that collection. But if you want to add merely one element, you can do it also, but the condition is that you have to follow that set protocol, means you have to give into the what we call collection, you have to give that particular element into a list. तो उसे list को unpack करेगा, वो 10 पे नहीं जाएगा, because 10 is not iterable. 10 is just combination of the numerical values. Is it? Yes or no? Sir, if I give 10 in the form of string, then it will unpack it at like 1, Definitely. 0. Definitely. Okay, okay. Got it? Everyone, yes or no? Yes, sir. ठीक है? So now come to the part which is the remove. So हमने देखा append is very important. ठीक है? Reason is behind that when you're working on the data frame, you're working on any loop, you're working on the defining function, maybe you will be confronted many times. So definitely अगर समझ में नहीं आया then you can ask any question, but बाद में मेरे से पूछोगे I don't want to entertain more. ठीक है? अभी पूछ सकते हो, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, you can ask any question now with the related topic, but बाद में पूछोगे सर ये append कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं नहीं, वहां पे नहीं बताऊंगा. ठीक है? So it's your choice. अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे पूछ सकते हो, वहां नहीं. सिमिलरली ठीक है, मैंने कहा ओके मेरे पास अपेंड से मैंने एलिमेंट ऐड कर लिया. ठीक है, उसका रेस्ट्रिक्शन था कि मैं एट अ टाइम एक एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ. देन देयर से एक्सटेंड मैंने ठीक है कलेक्शन के एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ. कि कैन आई रिमूव सम एलिमेंट्स, अगर मेरी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है कि मैं उन्हें रिमूव कर सकता हूँ. तो ठीक है लेट्स सी, मैंने कहा ओके लिस्ट मेरी L है, दिस इज माय लिस्ट. सो ओके आई वांट टू गिव सम एलिमेंट फर्स्ट. 1 2 3 4 5. So ठीक है, मैंने कहा ओके आई वांट टू जस्ट रिमूव 2 फ्रॉम माय लिस्ट. ओके देन यू कैन सी इज 1 2 3 4 5 2 रिमूव. ठीक है, मैंने कहा ओके
can I remove 2, 3, 4 at a time? यानी मुझे तो not 2 already removed, so 3, 4. I want to remove more than 2 elements. ठीक है, let's see. Then again the same error, remove take exactly 1 argument but 2 given. ठीक है, तो मैंने कहा okay, क्या मैं इसे लिस्ट में पास कर दूं तो ये मुझे 3 और 4 को रिमूव कर देगा? यानी मैंने कहा ठीक है, मैं मोर देन 2 एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं वो कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ये मुझे क्या कह रहा है, लिस्ट डॉट रिमूव देन कॉलन एक्स नॉट एन लिस्ट, मीन्स दैट ये इस एरर का मतलब किसी को समझ में आ रहा है? एनीवन? टेक्निकली नॉट गिव दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन के वो क्या कह रहा है, टेक्निकली किसी को समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग? Element is not present in the list. व्हाट? सॉरी? The element is not present in the list. Yes, definitely. यानी there is a syntax list dot remove, और जो remove में आपने x argument पास किया है which is 3 and 4, ये कह रहे हैं वो लिस्ट में है ही नहीं। यानी अगर मेरे पास कोई नेस्टेड पार्ट होता, लेट्स सी, मैंने कहा ओके 3, 4 नहीं है, यानी वो नेस्टेड पार्ट में नहीं है, एक कलेक्शन नहीं है। ठीक है, मैंने अपना लिस्ट चेक किया, मेरे पास लिस्ट क्या है, विच इज 1, 2, 3। ओके, मेरे पास एक नेस्टेड पार्ट है 1, 2, 3, सिंपल, देन यू कैन सी। सो मीन्स दैट सेम रिमूव विद द अपेंड, आप एक एक वैल्यू अपेंड कर सकते हो, इसी तरह आप एक एक वैल्यू रिमूव कर सकते हो। अब नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या अगर मेरे पास बड़ा डेटा है तो क्या मैं ऐसे ही वर्क करूंगा या करूंगी? नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लूप्स। So means that you have to create your logic into the loops. Maybe your data having 10 lakhs values, no need to bother about 10 lakh times. You have to just create a logic single time and just run that particular loop. Your loop will be working 10 lakh times. So no need to worry about these things. अभी हम basics पे work कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे बेसिक्स अच्छे होंगे, जब पिलर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट एनीथिंग। सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द कोडिंग। आपके अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है, अगर आपको लिस्ट पे वर्क करना नहीं आता है, स्ट्रिंग पे वर्क करना नहीं आता, डिक्शनरी पे वर्क करना नहीं आता, क्योंकि यही 3 चीजें जो आपको मिलेंगी मोस्टली, ठीक है, 99% इन योर प्रोजेक्ट। अगर आपको इस पे बेसिक्स नहीं पता तो यू कैन नॉट बी वर्क ओवर दी लूप्स, नहीं कर सकते आप कुछ भी कर लेना। सो फर्स्ट थिंग इज दैट क्लियर्स योर बेसिक्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों हो रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सटेंसिवली बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, आपको पता चलना चाहिए क्या है, कलेक्शन क्या है, कैसे अनपैक्ड हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही है। क्योंकि व्हेन maybe in the defining function we are again doing these kind of thing which is unzipping and the zipping things, then you can understand again क्या ये हो क्या रहा है, ठीक है। बट उसे कनेक्ट कर पाओगे तभी जब यहाँ पे आपने डॉटेड्स अपने कनेक्ट कर रखे हैं, अदरवाइज यू वोंट एबल टू कनेक्ट। बट इट इज रियली वेरी वेरी सिंपल एंड नो नीड टू जस्ट मे बी टू स्कूड अप योरसेल्फ कि ये हो क्या रहा है। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। अगर आप लॉजिक के संग जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए मना नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट कि अभी तक हमने क्या किया, अपेंड में जो यस सॉरी हेलो सर, मैं कनेक्टेड हूँ ना सर, क्योंकि मैं हैंड रेज किया हूँ बहुत टाइम से, कुछ पूछना था सर आपसे। ओके, जस्ट टेल मी। सर ये जो आपने रिमूव वाला ऑप्शन पढ़ाया, जैसे कि अगर मेरे पास मल्टीपल नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3, देन मुझे 3 ओनली रिमूव करना है, तो व्हिच एलिमेंट इट विल बी रिमूव सर? जैसे कि 3 टाइम्स है, तो वो कैसा रिमूव करेगा सर? पहला रिमूव करेगा, पहला वाला। so that's again limitation with the functions also। क्या अगर अभी हम देखेंगे, there's a limitation with the index also, there's a limitation with the calling value also। so let's suppose आपने कहा क्या मुझे रिमूव करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बट ये रिमूव कर रहे हैं इसको, बट आई वांट टू रिमूव ऑल द नंबर्स which is resemble with the 3, so definitely you have to make your own defining function। so that's a beauty of the loop, that's a beauty of your defining function। क्या अगर आपको ये काम करना आता है क्या, how to just remove all the value which is present in the list R3, then you have to define your own functions, you have to work on the loops। so we will see later these things, maybe जब हम work करेंगे loops में और defining function में जाएंगे, then you can do the same tasks also। similarly अभी मैं आपको दिखाऊंगा there's a index function also। इंडेक्स फंक्शन आपको वैल्यू का इंडेक्स बताता है। लेट्स सपोज आपको किसी वैल्यू का इंडेक्स देखना है,
क्या लेट्स सपोज मेरा एक बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें 11 वैल्यू है, उसका इंडेक्स क्या है, तो जो फर्स्ट मेरा 11 वैल्यू आएगा उसका इंडेक्स बताएगा, सेकंड जो 11 वैल्यू है उसका इंडेक्स नहीं बताएगा, वी हैव टू पास दैट नेक्स्ट आइटरेटिव इंडेक्स वैल्यू, देन आई कैन डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट 11, index value of next 11. But again, it's kind of manual work, but if I know how to work on the loops, if I know how to just define the function, then you can do it anything in the Python. That's a beauty. So again, it's a limitation with the scripting things, because scripting is just for the beginners. It is not for those person who really want to write their codes in an advanced way. No. So that's why अगर आपको लूप्स अच्छी तरह आता है, डिफाइनिंग फंक्शन आता है, देन यू कैन डू इट एनीथिंग, एंड रियली दैट्स अ ब्यूटी, क्योंकि अगर आप डिफाइनिंग फंक्शन लूप्स पे वर्क नहीं कर सकते तो इट डजंट मीन you are not a data scientist, because in the practical world, if you have a project, then you have to make very high number of calculative fields, and you don't know how to just make these fields by the help of just pandas and the scripting function. You cannot do these kind of things. You have to use the take the help of the loops, have to define your own function, then you can do anything, whatever you want, you can do anything. That's a beauty. So that's why आप किस पे करना चाहते हो, इट्स योर कॉल, ठीक है। तो अभी पता चला रिमूव एक एलिमेंट करना चाहता आप, देन यू हैव टू डू आइटरेटिवली, देन यू हैव टू डिफाइन योर ओन फंक्शंस, क्या वो हर वैल्यू पे जाए और उसे जहां भी 3 मिले वहां उसे रिमूव करते जाए, तो देखेंगे उसे, ठीक है, कैसे करेंगे बस। सो नाउ कम टू द पार्ट, अगेन देयर इज अ इंसर्ट। तो इंसर्ट में अगर आप देखोगे देयर इज अ सिंटैक्स, द इंडेक्स वैल्यू एंड द डेटा टाइप, यानी मीन से दैट अभी तक मेरे पास जो लिस्ट है L, दिस इज माय लिस्ट L which is N, A, M, Abhi, Nitin, 10, 3, 4, 5, this kind of value. But I want to insert A at the index of 5. तो अभी हम substitution भी कर रहे थे, ठीक है, substitution there is a mutability, is just kind of replacement. But मैंने कहा कि मुझे अब value add करना है, append में last index, in extend collection of elements, मैंने किया remove से मैंने value remove किया, then I want to add some values at their indexes, not their indexes, according to my choice. So मैंने कहा ओके 5 पे ऐड कर दो, तो 0, then you can see that value 0, 1, 2, 3, 4, 5, this is my 5, देख सकते हो आप, इसने ऐसा नहीं किया कि 5 जो मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5 10 को सब्स्टिट्यूट किया है, नो, simply insert the value, that particular value which is at 5 index and this is A, simple. और अगर मैं इस जगह ये करता तो इट्स ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंसर्ट एंड द म्यूटेबिलिटी. In the mutability, I am just substituting the value according to my choice, and in the insert, I can add that value at any index. Got it? The difference between append, extend, and then insert and the mutability. ठीक है? All fours. Got it, everyone? Yes or no? So now come to the part which is reverse. Reverse means that जैसे हम वहां ऊपर स्लाइसिंग पे वर्क कर रहे थे कि I can reverse my list also. Similarly, there is a L dot reverse. So I can do just reverse part also. इसकी जगह मैं डॉट डॉट -1 भी कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस पार्ट ऑल्सो, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो आपने रिवर्स भी कर सकते हो, देन यू कैन इंसर्ट एनी वैल्यू, देन रिमूव द वैल्यू, एक्सटेंड द वैल्यू, अपेंड द वैल्यू। सिमिलरली यू कैन सॉर्ट द वैल्यू। लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू है, देयर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 1, 6, 78, 32 काइंड ऑफ दिस, दीस आर द वैल्यूज, ठीक है। आपने कैसे सॉर्ट कर दो, मीन्स दैट रिवर्स ट्रू मीन्स आप इस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, then you can see that value which is the default is false, ठीक है, this one ascending order. But let's suppose आपने कहा क्या मुझे नहीं क्या करना है, reverse equals to true, अगर आप यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको वैल्यूज आपकी देगा, बट आपने कहा नहीं मुझे क्या चाहिए, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, देन यू हैव टू पास दैट आर्गुमेंट विच इज ट्रू। आपने कहा मुझे क्या चाहिए, एक आर्गुमेंट रिवर्स ट्रू, यानी जो असेंडिंग है डिफॉल्ट उसको वो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। सिंपल, यानी आप सिंपल क्या करो, जो आपने सॉर्टिंग करी उसको रिवर्स कर दिया, यानी एल डॉट रिवर्स जो किया था वही इसने क्या किया, रिवर्स को ट्रू कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया, सिंपल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली मेरे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, दिस आर द अल्फाबेट A C C C W H काइंड ऑफ थिंग, मैंने कहा एल डॉट सॉर्ट रिवर्स ट्रू कर दो इसको, देन L W C C A, इट्स सिंपल। नाउ दिस इज द पार्ट जब आपके पास क्या है, आपके पास डेटा टाइप सिंगुलर है, मे बी इन द न्यूमेरिकल, मे बी इन द अल्फाबेट फॉर्मेट।
बट मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स भी हैं, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी हैं, देन आई वांट टू डू, और जिसमें कुछ कलेक्शंस भी हैं मेरे अल्फाबेट के। तो मैंने कहा ठीक है, इस लिस्ट को हम सॉर्ट करते हैं, और इस लिस्ट को हमने सॉर्ट किया। देन इट सेज दैट नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस str int एंड द str। क्या मतलब है इसका? कुछ कह रहा है ये आपसे। दैट साइन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस साइन। एनीवन कैन टेल मी व्हाट्स ये साइन क्या है और ये क्या शो कर रहा है? नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंट एंड str, क्या कहना चाह रही है? एनीवन? यस मुस्कान। It does not work in the case of integer and string data types. Okay, and what's the meaning of this sign represents? I think it's a comparative operator. Great. So means that this is the comparative, because let's suppose if I want to just do any kind of sorting, so 0, this kind of 1, 2, 3, so that's why this is the sorting sign again. So ये आपको यही बोल रहा है कि देखो यहाँ पे जो आप sorting करना चाह रहे हो, means that this is the sign represents this one, 0 is less than 1, so again 10 is less than 20, so this is not supported between instances of int and the str। यानी जो आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो based on their weighing value, it is not possible because in this particular list there are some strings also and there are some integers value, so it is not possible to compare their values in terms of a and the 10। got it everyone? yes or no? it's simple। so अगर मेरे पास numerical values and definitely I can do in the ascending order, I can do in the descending order। default means that you are just doing your things in the ascending order, but if you're just passing an argument reverse equals to true, means that you want to see your output in the descending order। similarly in the alphabetical, but if you are doing the same thing, maybe just collection of element with the int and the str, then this comparison operator is not possible, means this type of comparison or sorting is not possible। got it? so it's sorting kind of things, you can do it। now come to the part which is the remove। remove में हमने क्या किया कि वो वैल्यू दिया और वो remove हो गया, ठीक है, लिस्ट में से। but I want to just fetch out any single element from the list। how may I do it? by the help of pop it। so let's suppose मेरे पास ये list था, then you can see this is my list A E F G 23, this kind of list I want to do। I'll simply pass this kind of list। so this is my list। so 2 3 6 17 32 14, there are some elements। now I want to pop my element which is 78। तो ये क्या करेगा, ये मुझे एलिमेंट फैच करके दे देगा, ठीक है। तो लेट्स सी अभी क्या करे, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, मींस ये मेरे पास क्या था, लिस्ट 2 1 6 एंड 78। मैंने कहा मुझे 78 फैच करके दे दो, ठीक है। बट हियर यू कैन सी द इन सिंटैक्स, ये क्या शो कर रहा है आपको, क्या आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। यानी इंडेक्स मीन्स दैट आपको उसका 78 इज एट इंडेक्स दिस वन 0 1 2 3, तो आपको उसके इंडेक्स देना है। सो लेट्स सपोज यू वांट टू फेच एनी वैल्यू, देन हाउ टू डू इट, बाय द हेल्प ऑफ पॉप, बट शुड बी रिमेंबर्ड इंडेक्स you have to give that index। remove में आपने क्या किया था, there is no need to give that particular index, you have to give that particular value। there is a difference between the remove and the pop। remove जो लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव कर देगा बेसिस ऑन कॉलिंग देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, बट इफ यू आर जस्ट कॉलिंग द पॉप देन यू हैव टू गिव दैट देयर पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, आपको उसका रेस्पेक्टिव इंडेक्स वैल्यू देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 8 एलिमेंट, कोई भी 8 इंडेक्स का मुझे एलिमेंट फैच करके दे दो। नाउ यू कैन सी देयर इज अ 98 जो मेरे किस इंडेक्स पे है। Got it everyone? Yes or no? So there is a difference between remove, error हमेशा ध्यान रखना कि वो error is very very important, ठीक है। तो pop में क्या डिफरेंस है, append and extend में क्या डिफरेंस है, ठीक है, each and everything। और अगर मैं substitution कर रहा हूँ, what's the difference, what's a mutability, what's a kind of insert, extend, append। now come to the part which is count। let's suppose if I want to just count, क्या उसका frequency कितना है लिस्ट के अंदर। so there is a list, this one ES, I just call it that particular list L, and let's see,
So there is a AS L, this is my list. I want to count my AS elements. So ये मुझे बता रहा है कितना है 3. So now let's see, you can just count. There's a 1 and there's a 2 and there's a 3. So frequency is showing 3. That's why, because उसका occurrence कितना है ये इसका is 3. Maybe if you want to just count any number, then you can do it also. Maybe I just insert some number here and then I want to just count 10. So here is 2. ठीक है, तो मुझे ये काउंट उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करके दे देगा. लेंथ आपको पता ही है, it tells about the number of elements present. Now come to the part index. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the count function, can we give more than one argument? Can we find the occurrence of more than one element? So let's suppose if you want to give then 10 and the 100 at the same time. If you want to give, क्या मुझे क्या करना है, 10 का भी पता करना है and 100 का भी पता करना है. ठीक है, तो again there is a problem with the two experiment and there is a problem again. जैसे हमने append में देखा, you have to give that one argument. Similarly in the count also, the concept is behind that. Let's suppose आपके पास एक list है 10, 20, 30, then 10 and then 50. ठीक है, आपको पता करना है 10 का. तो सिमिलरली वो क्या करेगा, 1 by 1 iteration करेगा. मीन्स यू हैव टू जस्ट गो इनटू द लिस्ट एंड देन काउंट हाउ मेनी टाइम्स 10 विल बी अकर्ड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. ठीक है, तो आपने काउंट किया 1 and 2. बट इफ यू आर जस्ट गिविंग दैट वैल्यू व्हिच इज 10 and 100, देयर इज नो सेंस फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन. काउंट के लिए वो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 10 and 100 क्या है, कुछ भी नहीं. तो मीन्स दैट उसे आपको 1 by 1 वैल्यू, क्योंकि 10 and 100 लेट्स सपोज देयर इज अ टपल इज काइंड ऑफ थिंग, देन डेफिनेटली इट कैन अंडरस्टैंड. But it's all about an individual value. You have to count that individual value basis on their frequency occurred in that particular list. तो वो कितनी बार most oftenly occurred हो रहा है उसके basis पे. But if you want to do the same thing, again there is a question, क्या हम फिर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 10, 20, 50 and then again मेरे पास 10 है, then 100 है, then 10 है. तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 10 और 100 दोनों का काउंट पता कर लूँ at the same time? Yes, you can do it. There is again calling of the function. You can make your own functions also. That's the beauty of the Python. You can make your own function. At the same time, it will iterate over the values. How many values are 10 in this particular list? It will give the count. Again, it will go to the 100 and then again it will give the count of the 100's value. So it's a beauty. It's a beauty that you can do it also the same thing. When we just go over the loops and just defining function, then whatever the concept is going on कि हम 10 और 100 के एक साथ काउंट कर सकते हैं. yes, you can do it also. तो आप कर सकते हो उसको, यानी जो आप चाहते हो वो जितनी बार चाहते हो वो उतनी बार आपको वैल्यू देगा. एंड आई विल टेल यू, हमने एक फंक्शन, नॉट फंक्शन, ऑपरेटर पढ़ा था विच इज a प्लस इक्वल्स टू 1. ठीक है, दिस इज नोन एज काउंटर. व्हेन यू आर जस्ट यूजिंग योर फॉर लूप, लेट्स सपोज फॉर i इन a, एंड a में मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है. तो देन आपने कंडीशन दी, इफ i एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10, तो वो क्या करे, इस वैल्यू को आपने एक वैल्यू दिया b इक्वल्स टू 0, b प्लस इक्वल्स टू 1. तो हर बार क्या करेगा, जब जब उसे i 10 मिलेगा इस लिस्ट में, तब तक वो b का वैल्यू बढ़ाता जाएगा. सिमिलरली आपने एक और इसे कंडीशन दिया, elif, लेट्स सपोज वो जाएगा इस कंडीशन पे. अब आपने 100 के लिए दिया, अगर उसे 100 मिलता है तो वो 100 पे, यहाँ पे एक और आपने c दिया, तो c को प्लस इक्वल्स टू c प्लस इक्वल्स टू 1, तो c का काउंट बढ़ाता जाएगा. एलिफ में आपने कंडीशन दिया i एग्जैक्टली इक्वल्स टू 100, तो 10 पे चेक करेगा, 100 पे. दिस इज द कोडिंग. अगर आप इसे रन करोगे तो वो आपको 10 और 100 के दोनों के काउंट दे देगा एट द सेम टाइम और स्टोर करा देगा b and c में. So there are lots of ways we can define our own function also. We can do these kind of things. It's very very simple. अभी आपको शायद हो सकता है समझ में नहीं आया हो, but it's very very simple. You can do any kind of work. That's a beauty. तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें बेसिक्स पता होने चाहिए. यानी हमें ये पता चल गया, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन आल्सो, कि एट द सेम टाइम वी कैन काउंट मोर देन 2 वैल्यूज. सो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू, जब आप किसी का काउंट कर भी रहे होंगे तो आपको अब पता चल गया क्या वो किसका काउंट करेगा, सिर्फ एक वैल्यू का करेगा. बट लेट्स सपोज इफ आई वांट टू जस्ट काउंट मोर देन 3 वैल्यूज, कैन आई डू इट? यस, यू कैन डू इट आल्सो. यू कैन जस्ट डिफाइन योर ओन फंक्शन. दैट्स अ लॉजिक. दिस इज अ लॉजिक. और अगर आप इस लॉजिक को रन करोगे, देन यू विल गेट द आंसर आल्सो.
आपको आपका आंसर भी मिलेगा। तो इट डिपेंड्स आप किस तरह से वर्क करते हो। तो कोडिंग इज जस्ट दैट्स अ ब्यूटी। अगेन मैं यही कहूंगा कि कोडिंग का अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो और मैं कह रहा हूँ नहीं ये नहीं हो सकता, इट मीन्स वो मुझे नहीं पता। Really, coding is just all about the customization. Anything you can do it. Let's suppose if you are just asking any question and I'm saying that no, it is explicitly say that no, it's not possible. It means my knowledge is not sufficient. That's why I'm saying that no, it's not possible. In the coding, everything is possible and people are doing. Got it, everyone? It's really simple, but the thing is that important कि आपको बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका कोडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जब आप लूप्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये सारा जो कोडिंग है वो ऑपरेटर एंड देन दिस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसी से सारा कोडिंग फॉर्म हो रहा है और कहीं से फॉर्म नहीं हो रहा है। मैं आपको फॉर भी बताऊंगा, इफ भी बताऊंगा, ठीक है, बस वो ऐड करना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आ रहे हैं। ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे देखो अभी कुछ क्या लिखा था, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10 ये लिखा था ना, ऑपरेटर है, ठीक है। इफ और फॉर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर ये है तो बी 0 तो वो क्या करे, बी प्लस इक्वल्स टू 1 यानी बी इक्वल्स टू बी प्लस 1 करे। सारा काम हम वही कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है, यानी जो हम पास में पढ़ के आ रहे हैं वही सारा काम करेंगे आगे जाके। तो स्ट्रॉन्ग क्या करना है, जो ऑपरेटर्स और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं अगर इसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे देन, और थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। इंटेलेक्ट मीन्स दैट कि आपको कनेक्टिंग करना पड़ेगा। अगर इन अ बिगनिंग फेज आई विल टेल यू, अगर आपको सोते समय आपके कोड दिमाग में नहीं आ रहे तो मीन्स दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट द कोडिंग लिटरली। मे बी it depends on person to person on their own personal experience, but it's my personal experience is that कि अगर आपको सोते समय कोडिंग नहीं आ रही है आपके दिमाग में, यानी आपके दिमाग में जब लूप्स नहीं चल रहे, डिफाइनिंग फंक्शन नहीं चल रहे, तो यानी इसका मतलब आप कोडिंग को सीरियसली नहीं ले रहे या आपको कोडिंग आ ही नहीं रही। दैट्स अ ब्यूटी। आप जब करोगे, जब आप बहुत सीरियस होगे तब आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। तो आपके माइंड में वही कोड चल, जब आप सो भी रहे होंगे ना तो वो कोड ही चल रहे होंगे माइंड में, तो समझना कि अब आप कोडिंग सीख रहे हो। नहीं तो अगर नहीं आ रहे तो मतलब ये समझना कि आपको कोड नहीं आ रहा है। Got it? So that's a beauty. Now come to the part which is the last scripting function which is present in the list data structure। कि अभी तक हमने क्या देखा, इंसर्ट फंक्शन से कि किस इंडेक्स पे लिस्ट को और एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, अपेंड से देखा, एक्सटेंड से देखा, काउंट से देखा, सॉर्ट से देखा। नाउ कम टू द पार्ट के इंडेक्स। आपने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है और उसमें मुझे एक वैल्यू है ऐश, उसका इंडेक्स पता करना है। कैन आई डू इट? यस डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो ऐश उसने बता दिया। और नाउ कम टू द पार्ट कि मैंने जब एल को कॉल किया एंड इन द एल ओके देयर इज नो, सो आई जस्ट रिमूव दैट ऐश, ठीक है। तो ये मुझे बता रहे 2 पे, जबकि अभी हमने काउंट देखा था किसका, ES का, तो वो मुझे काउंट 3 बता रहा था, ES, ठीक है 3, यानी डिफरेंट इंडेक्स पे भी है। बट इंडेक्स यानी एक इंडेक्स जहां पे उसे मिला, सबसे पहला लिस्ट उसे जहां पे मिला उसने वहां पे स्टॉप कर दिया। हियर यू कैन सी दिस वन 2, बट उसके बाद भी देखो ES है, दिस वन O के बाद भी है एंड उसके बाद भी है, लास्ट में भी है इंडेक्स। तो क्या मैं इसके इंडेक्स पता नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो मुझे मैनुअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा मींस 2 पे मुझे पता चला, सबसे पहले मैंने ऐसे कहा ओके 2 इंडेक्स, यानी अगर 2 के बाद है, यानी 2 तक मुझे पता चल गया ES है, अगर इसके बाद है तो मुझे बता दो। तो मैंने कहा ओके, पाइथन से कहा ठीक है शुरू करो। पाइथन ने मुझे बताया 11, यानी अब कहां तक, 11 इंडेक्स पे आपको ES मिल गया। 3 से 11 इंडेक्स के बीच में है, हाँ है 11। मैंने कहा कि इसके बाद भी है क्या, तो मैंने कहा ठीक है इसके बाद वाला मुझे इंडेक्स बता दो। तो उसने मुझे बताया 16 इंडेक्स पे है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ा है, मैनुअली वर्क करना पड़ा है। यानी देयर इज अ लिमिटेशन विद द इंडेक्स फंक्शन इज दैट if you want to know all the indexes of ES which is present in my list, it is not possible to do these kind of things. Just wait Muskan, I'll wait, let me complete first. So again there is a problem, yani means that I have to insert these manual values, then I can understand okay these are the values are present in my list. But आपको कोडिंग आएगा, लूप्स आएगा, डिफाइनिंग फंक्शन आएगा, देन यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शंस through which you can just know all the values, or I can say all the element which is ES, you can know about all the indexes of your respective values। यानी ES के अगर मुझे indexes पता करने हैं तो definitely by defining my own function I can just know all the indexes of my respective value। Yes Muskan?
Hello, hello. Yes, please. Sir, am I audible? Yes, definitely. You are not audible now. Yes, please, Muskan. Is Muskan audible to all except me? Sir, I was saying that the value you are writing after ES, Yeah. what are those values? Okay. मेरे पास ES था, वो कौन से इंडेक्स पे था? 2 इंडेक्स पे, ठीक है. लेट्स सपोज मैंने कहा मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 देन 2 देन 10 देन 11 देन 12, ठीक है. अब मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स पता करना है 2 का. मैंने पाइथन को कोड दिया l डॉट इंडेक्स, मुझे किसका बताओ? 2 का. सिंपल. तो ये काउंट करेगा, ओके 0 0 एंड दिस इज 1. तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा? दिस इज 1. यानी 2 मेरे किस पे? 1 इंडेक्स पे. बट इसके बाद भी तो 2 है ना, विच इज 2 3 4 एंड 5. यानी मुझे इसके बाद वाला भी 2 पता करना है. तो मुझे पता चला ओके मेरा फर्स्ट 2 फर्स्ट इंडेक्स पे था. तो इट मींस अब पाइथन से मैंने कहा कि फर्स्ट इंडेक्स के बाद से काउंट करना शुरू करो, क्या उसके बाद कोई 2 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. तो मैंने कहा ओके, मैंने वो इंडेक्स वैल्यू दे दी कि अब 2 से शुरू करो, क्योंकि 1 पे तो मुझे मिल चुका है. 1 पे मुझे क्या मिल चुका है? 2 मिल चुका है 1 इंडेक्स पे. तो उसके बाद इंडेक्स से काउंट करना शुरू करो और सर्च करो कि वहां पे 2 है क्या नहीं. तो वो 2 पे जाएगा, नहीं है. 3 पे जाएगा, नहीं है. 4 पे जाएगा, नहीं है. 5 पे, या 5 पे, तो मुझे 5 दे देगा. गॉट इट? समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट द इंडेक्स वैल्यू, जो मुझे ये बता रहा है कि इसके बाद से शुरू करना है. यू हैव टू जस्ट रन योर कोड आफ्टर दैट आइटरेशन. गॉट इट? Yes, sir. Anyone having any doubt so far? It's all about your list. It's clear, everyone? Any doubt so far? So this is all about the list part, and it's all are same. Okay. मैं tell you this thing, ये already हम कर चुके हैं maybe. So you can understand. ये मुझे कोई बताएगा ये error क्यों है? Invalid literal for int with base 10. Why it is showing this error? आपने ऑपरेटर्स का भी मुझे असाइनमेंट दिया था, तो ये एरर क्यों दे रहे हैं मुझे? एनीवन? ऑपरेटर्स आपने असाइनमेंट किया हुआ है, उसमें आपने आंसर भी दिया हुआ है मुझे. उसमें means that there is a value which is 10.2. I want to just convert this value into the integer and plus 2. I can do it, but it is showing some error, invalid literal for int base 10. ये आपको बहुत बार एरर आने वाला है. Why it is showing this error? Anyone? Because here it is not converting the data type, it is showing that the data type of that particular number, that means integer a, so that a should be in integer value, not in float. Why? अच्छा, इसका मतलब क्या है? int ब्रैकेट ऑफ a, इसका मतलब क्या है? a में जो भी integer value है वो लेगा, और a में तो integer value है ही नहीं, a में float value है, so according to me that's why it is giving an error. Your answer is right, but the concept is not right. Okay. और कोई मुझे बताएगा कॉन्सेप्ट क्या है? Why it is showing this kind of error? And what is the meaning of line number 254? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसमें क्या मतलब है इसका? Yes, anyone? It's very very simple. ये मुझे एक एरर दे रहे हैं, invalid literal for int with base 10. इसका कुछ मतलब है. It's really very very important. Yes, anyone? अच्छा, पहले लाइन नंबर प्लीज. सर जो a का वैल्यू है वो बेस 10 है सर, बट यहाँ पे हमने दिया है 10.2, तो ये एरर इसीलिए आ रहा है कि अब आगे नहीं, अब क्या करेगा? ओके 8.2 में नाउ तो सर वो वैल्यू ही आना चाहिए ना सर, बट बेस 10 नहीं आ रहा ना सर. उसका वैल्यू वो बेस 10 का इंटीजर. मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस 10? Sir, it is not वो able 10 ही to. होना चाहिए. वेट, वो 10 ही होना, जो 10 ही तो किया था अभी मैंने.
और कोई एनीवन? Sir, I think it is not able to convert the 8.2 into int. Why? Sir, because it is a float value. I mean, it is a string and Sure. it can be converted to a Great. float value. Yeah, Great. we have used it in a string function. Means is that there's a hierarchy, a string, there's a float and there's a int. तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, उसे स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ और डायरेक्टली इंट कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ. यानी स्ट्रिंग वैल्यू देके मैं डायरेक्टली उसे क्या करना चाह रहा हूँ, इंट वैल्यू. यानी मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को या तो मैं फ्लोट पे कन्वर्ट करूँ, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैं चाह रहा हूँ कि देयर इज अ स्ट्रिंग एंड द इंट वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूँ. अब जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसके अंदर भी एक डेटा टाइप है विच इज 10.2, यानी स्ट्रिंग देन फ्लोट एंड देन इंट. यानी ये दोनों डेटा टाइप अपने आप में क्या है, देयर इज टू डेटा टाइप विच इज स्ट्रिंग एंड फ्लोट. तो डेफिनेटली इसीलिए वो मुझे क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है जो किसके रिलेटिव है, मेरे इसके. अगर मैं इस वैल्यू को एक डेटा टाइप में कर देता हूँ, यानी स्ट्रिंग से इंट पे मुझे आना है, यानी देयर इज अ वन डेटा टाइप which is string to int, क्योंकि my value which is 8 is already in the form of int value, ठीक है, then there is no problem. यानी अगर आप क्या करते हो, उसे जो फ्लोट वैल्यू दे रहे हो, there is a 8, let's suppose मैंने कहा 9, there is a float value, then again there is a error, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, there is a hierarchy, string and then there is a float and there is a int. तो ये जो वैल्यू कंटेन कर रही है, ये क्या कर रही है, स्ट्रिंग से फ्लोट में कर रही है. और मैं यहाँ से अगर यहाँ आना चाह रहा हूँ तो वो सिंगल डेटा टाइप में वर्क करेगा, वो डबल डेटा टाइप में वर्क नहीं करेगा. ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया कि वो डबल डेटा टाइप में वर्क नहीं करेगा. तो अगर मुझे लेट्स सपोज मैंने कहा ये तो कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. गॉट इट? सो अगर मेरे पास दो डेटा टाइप हैं एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल स्ट्रिंग टू इंट, तो मीन्स दैट अगर वो मुझे लिटरल बेस 10 कह रहा है, इट मीन्स क्या मेरे पास जो इंट वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो क्या है, एक फ्लोट वैल्यू के संग है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू मीन्स दैट देयर इज अ बेस ऑफ 10, यानी पॉइंट के बाद उस पर कुछ यूनिट प्लेसेस, और सॉरी उस पॉइंट के बाद कोई डेसिमल प्लेसेस का वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग दिस इज अ बेस 10. तो कभी भी अगर आप वैल्यूज पे वर्क करोगे एंड देयर इज अ ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ वैल्यूज which is maybe double data type and you want to convert it into the int, you will get the same error. Got it everyone? समझ में आया इसका? तो ये क्या कर रहा है, अगर मेरे पास, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ, there is a a, let's suppose 10 है, ठीक है, 10.8 है, I can convert into the int 10.8, तो ये मुझे क्या दे देगा, 10 वैल्यू दे देगा which is of integer value. ठीक है, तो उसका integer. सिमिलरली अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, I can convert into the string value. बट अगर मेरे पास दो डेटा टाइप की वैल्यू है और उसे मैं थर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा. ठीक है, तो अभी ये जो ए आया है इसे मैं इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंपली. तो आई कैन जस्ट फॉलो दैट हायरार्की, स्ट्रिंग इज एट टॉप मोस्ट हायरार्की, देन फ्लोट एंड देन इंट. गॉट इट एवरीवन? इट्स सिंपल. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट लिस्ट पार्ट. नाउ कम टू द पार्ट विच इज स्ट्रिंग्स. तो हमने क्या किया अभी तक, ऑपरेटर्स कंप्लीट किए, नंबर्स देखे, कुछ हमने वेरिएबल्स देखे, कैसे वेरिएबल असाइंस होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स देखे, लिस्ट पे वर्क किया. नाउ कम टू द पार्ट स्ट्रिंग. लिस्ट समझ में आ गया, तो स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इजी. तो लेट्स सी, तो स्ट्रिंग क्या था, यानी अब मुझे किस पे वर्क करना है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स पे. ठीक है, आप इसे वर्ड्स कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, मैं इसे कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स. वो क्या था, लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना. ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मींस इज दैट कि मेरे पास 1 2 3 है, कुछ भी है, कोई भी डेटा टाइप है, आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दीस थिंग. क्या स्ट्रिंग में ये सब कर सकते हैं? लेट्स सी, देखते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रिंग का जो प्रोटोकॉल है, अगर आपको पाइथन को पास करना है, क्या स्ट्रिंग पास करना है, तो आपको पाइथन को बताना पड़ेगा. कैसे बताना पड़ेगा? सिंगल कोट, डबल कोट. जैसे ही आप कोई भी वैल्यू, वेदर यू आर जस्ट राइटिंग 65 अंडर द कोट्स, पाइथन विल रीड एज str. ठीक है, ये str हम डेटा टाइप देख चुके हैं ऑलरेडी, और यू कैन राइट द सेम 65 अंडर सिंगल कोट. अब मोस्टली आप मेरे जितने भी कोट्स देखोगे उसमें डबल कोट्स होंगे. द रीजन इज बिहाइंड दैट,
उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है. No need to just worry. It's your call whether you are suitable just passing these values under the single quote. You can do it. It's no need to just worry about the things. मेरे उसमें क्यों देखोगे, there is a logic behind. क्या होता है अभी आपको पता भी चल जाएगा. there are two logic behind. ठीक है. The first logic is just अभी मैं दिखाऊंगा apostrophic case में. ठीक है. And the second logic is very very important which is related to the JSON one. Anyone having any knowledge what about the JSON? किसी ने वर्क किया है कभी JSON पे? APIs पे वर्क किया हो? कोई API जानता है? Anyone having APIs? Anyone? किसी ने किया हो API पे कभी वर्क, कभी JSON पे किया हो, डेटा कभी फैच किया हो किसी सर्वर से? ना, मे बी सर्वर नहीं कहूँगा मैं उसे, मे बी किसी API से डेटा फैच किया हो. Anyone? No one? So no issue. So let's suppose हमारे पास क्या है, डेटा होता है. डेटा सिंपली जैसे मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा किस फॉर्म में होता है, टैबुलर फॉर्म में. अब टैबुलर फॉर्म में तो यानी मेरे पास क्या होंगे, उनके कुछ फीचर्स के नेम होंगे. जैसे मैंने कहा नेम, मेरे पास एक डेटा है मेरे स्टूडेंट्स का, इसी क्लास का नेम, एज, हाइट, वेट, जेंडर, qualification, and let's suppose there's another feature which is maybe I can say address. Okay, so I can say it's a tabular data or tabular format of data. Okay, it's a tabular. So generally we call it as relational database management or we can call it as relational database. यानी ये कैसा है, जब मैं tabular data में अपना data store करता हूँ, यानी data means let's suppose there's a name Muskan, there's a name Pujita, Swadhin, Anshita, Akshita, Ritika, Ankit, Amit. ठीक है, these are some names. तो ये मैं कैसे स्टोर करूँ, tabular format में स्टोर करूँ. When I just store this data in the tabular format, I call as relational database management system. ठीक है, which is the part of the SQL. But nowadays there is another database management system is very very popular, and generally new companies are falling. I am not talking about the outdated companies, क्योंकि outdated companies भी SQL पे work कर रही हैं, but if I'm talking about the new company like Amazon or maybe they are working on the cloud which is AWS. Generally most of the companies, the beauty of the AWS, the cloud system is that no need to just install the server physically, no need to just take care 24/7, no need to just give that electricity 24/7, and then you need some kind of technician who just take care each and everything. That's why companies are working on the cloud. अब cloud क्या होता है, इसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. No need to just if you feel monotonous, don't worry. Cloud basically, anyone having any knowledge cloud? Cloud तो पता होना चाहिए. किसी को पता है cloud क्या होता है? Yes or no? Anyone having any knowledge? It's a really very common thing. You have to just, yes, Muskan. What is cloud? Sir, it is a virtual space where we can keep our data, like Okay. without even worrying about the space or something. Like we have Vivo Cloud or any other iPhone. Like in iPhone, there is a iCloud, like something like that. Great, great. So what's the advantage? What's the advantage? So advantage is like we need not worry about the space. First of all, we can like keep our data over there, and we can fetch great. the data anytime we want. Okay, great, great. कोई live example दे सकते हो? Let's So like suppose. Google Drive we use. It is also Okay. kind of cloud. Okay, okay, good, good. Anyone? Yes, it's really great definition. Good, very good. Anyone? Sir, actually, I am working in a company where our Beam 360 is working there, and we are taking the data from there, and we are working. Actually, वो 360 में एक Beam 360 उसको बोलते हैं सर, वो क्लाउड में ही रहता है सर. उसमें Which cloud मैं services देख, are you using? कौन सा cloud service use कर रहे हो आप? वो तो पता नहीं, बट ये जो जैसे कि क्लाउड के बारे में पूछे तो मेरा कंपनी में मैं बीम 360 बोल के एक क्लाउड ये वाला रहता है, तो उसमें Okay. से हम लोग काम कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay. Anyone else? किसी और को कोई और डेफिनेशन देना चाहोगे? देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ. ये हम कब देखेंगे, जब वेब स्क्रैपिंग होगा. ठीक है, when we start to web scrap Flipkart website, then we have to just stipulated MongoDB server and just storing these kind of things JSON format each and everything. ठीक है, तो हम उसमें करेंगे. We have to just make an API.
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्यों क्लाउड का जरूरत पड़ा। अगर आप रिलेट करोगे तो उस चीज को आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज जब आपने मे बी इन 10th इन 12th जब आपके रिजल्ट्स आते थे, ठीक है, तो उस समय क्या होता था, सर्वर डाउन हो जाता था। किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये सिनेरियो? yes, एनीवन? sir. जब भी क्या होता है, यानी मींस दैट देयर इज अ ट्रैफिक, यानी एक मेरे सर्वर की कैपेसिटी है, लेट्स सपोज 1 मिलियन यूजर्स उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जब रिजल्ट ओपन हो रहा है, कोई भी वेबसाइट, कोई कंपनी या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, तो डेफिनेटली यूजर्स इंक्रीज हो जाएंगे, 1 मिलियन से लेट्स सपोज 10 मिलियन हो गए। अब लेकिन कैपेसिटी तो 1 मिलियन का है, या तो मैं क्या करूं 10 सर्वर्स और इंस्टॉल करूं, वो एक पर्टिकुलर डे के लिए, क्योंकि इसी दिन तो बस रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो नहीं आएगा। तो या तो मैं 10 सर्वर इंस्टॉल करूं, और 10 सर्वर्स का मतलब यानी मैं कॉस्ट का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करूं, और वो भी किस लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। इट्स नॉट काइंड ऑफ फीजिबल आइडिया। दैट्स व्हाई कुछ कंपनीज आई मार्केट में विच इज AWS, GCP एंड Azure। ये कंपनीज आई, इन्होंने कहा देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट जस्ट इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा सर्वर्स। और पहले ये समझते हैं एक्स्ट्रा सर्वर्स यानी CBSE को अगर 10 सर्वर चाहिए थे, जब सर्वर पे लोड आ रहा है तो सर्वर फेल हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा अपने फिजिकल सर्वर्स का, आप ऐसा करो हमसे 10 सर्वर्स ले लो। सो थ्रू द क्लाउड सर्विसेज CBSE क्या करेगा, इनके सर्वर्स ले लेगा, वर्चुअल सर्वर्स ले लेगा, और वो वर्चुअल सर्वर से अपना डेटा वहां पे रख देगा। यानी अब 1 मिलियन इंटू 10 एट द सेम टाइम 10 मिलियन यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। इन्हें कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी 10 सर्वर्स के बिहाफ पे, और जैसे ही वो इसका काम हो जाएगा तो ठीक है, आप अपने सर्वर्स अपने पास रखो। तो मीन्स दैट दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द क्लाउड। जब शुरू हुआ था तो मीन्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग द वर्चुअल स्पेस to various company where they can keep their data, where they can just sharing the data anywhere in the world. It's not kind of thing maybe जैसे अगर आपने मे बी आई डोंट नो इन द IT में गए होंगे, जब आपने जैसे सिस्टम पढ़ा होगा LAN, WAN, MAN, है ना, तो ये क्या होते थे, दिस इज शेयरिंग काइंड ऑफ networks. There's a local area, wide area network. If you're working through the internet, means that I am working WAN. If you're working through the cables, maybe from one home to another home, ठीक है, तो वो means that you are working on the LAN. Similarly, if you are working basis on the city to city, there's a Similarly, AWS means that through you need a simple internet connection, and you have that connection, just access their cloud space, you can just keep the data there, and your user can access these kind of facilities. Got it? समझ में आ रहा है क्या इसका इंपॉर्टेंस हुआ, क्यों लोगों को क्लाउड पे वर्क करना ज्यादा अच्छा लगा? सिमिलरली आज कंपनीज भी यही कर रही हैं। द रीजन इज बिहाइंड दैट, क्योंकि जब आप सर्वर्स अपने यहाँ इंस्टॉल करते हो तो उस सर्वर्स का मतलब क्या है, आप लोकली एक एड्रेस होस्ट कर रहे हो जो कहीं भी कहीं से आपके चीजों को एक्सेस कर सकता है। बट अगेन आपको उसके लिए सर्वर करना पड़ेगा इंस्टॉल, मींस दैट देयर इज अ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन आल्सो। सर्वर इज जस्ट नॉट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर थिंग, इट्स अ हार्डवेयर थिंग। यू हैव टू इंस्टॉल ईच एंड एवरीथिंग। देयर इज अ स्टोरेज डिवाइस, ईच एंड देयर इज अ स्विचेस, देयर इज अ गेटवे, देयर इज अ नेटवर्क डिवाइस, देयर इज अ राउटर्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू इंस्टॉल सेपरेटली व्हेन यू आर जस्ट गोइंग फॉर द सर्वर्स। यानी फिर आपको 24 आवर्स एयर कंडीशनर रखना पड़ेगा वो रूम, एक नॉट वन, आई कैन से 4 एम्प्लॉयज IT के रखने पड़ेंगे जो राउटर्स को मैनेज करेंगे, कोई नेटवर्क स्विचेस को मैनेज कर रहा होगा, कोई होस्ट को मैनेज कर रहा होगा। तो देख लो कितना कॉस्टिंग था। बट अब कंपनी क्या कर रही है, सीधे क्लाउड पे जाओ, क्लाउड पे अपना एक्सेस करो अकॉर्डिंग टू द स्केलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द एक्सेसिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द यूजरेबिलिटी। आप क्लाउड पे जाओगे, अपना डेटा वहां पे रखोगे और वहां से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने कहा कि मुझे 2 दिन के लिए करना है, सर्वर्स लेने हैं 100 सर्वर, उसके बाद मुझे फिर से 10 सर्वर्स का ही काम है, तो आप 2 दिन के लिए लिया। अब समझ सकते हो अगर यही सिस्टम होता तो आपको 100 सर्वर्स खरीदने पड़ते, कॉस्ट समझो, उसके बाद फिर से कोई यूज नहीं है। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ फीजिबिलिटी, कितना फीजिबल हो गया। तो दैट्स व्हाई एवरी कंपनी इज जस्ट transiting their process from own server to the cloud. That's why cloud is important nowadays. It's very, very important. And generally, because I also working on AWS, I also designing architecture of AWS also. So that's why it's very, very important nowadays. तो इसीलिए समझ में है क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे सकते हो कहाँ पे और कौन यूज कर रहा होगा क्लाउड जिससे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकता है? एनीवन?
जस्ट थिंक अबाउट, जस्ट डू ब्रेन स्टॉर्मिंग। कुछ और एग्जांपल दे सकते हो, गुड एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो। यानी आई एम टॉकिंग, यस फ्लिपकार्ट वगैरह सर। डेफिनेटली फ्लिपकार्ट। सो मीन्स दैट लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, फ्लिपकार्ट ने क्या किया, बिग बिलियन सेल ऑर्गेनाइज किया। अब नॉर्मल यूजर्स फ्लिपकार्ट के आ रहे हैं 10 मिलियन, बट जैसे ही बिग बिलियन डेज उन्होंने लॉन्च किया, मे बी फॉर 3 days, ये 10 मिलियन से कितने हो गए, मे बी आई कैन से 50 मिलियन। तो ये 5 times जब बढ़े तो डेफिनेटली वो 3 days के लिए, तो डेफिनेटली दे कैन हायर क्लाउड सर्विसेज, no need to just install these things. तो that's the beauty of the cloud things. तो again मैं API पे था, ठीक है, तो API भी काइंड ऑफ क्या होता है, जैसे अगर आपका सर्विसेज है, ठीक है, उससे मुझे डेटा एक्सेस करना है, विच इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, आई कैन डायरेक्टली एक्सेस योर डेटा आल्सो थ्रू द ऑथराइजेशन। तो मेरे पास जो डेटा आता है वो JSON फॉर्मेट में आता है। जब भी मैं डेटा को किससे लेता हूँ, API से लेता हूँ, क्योंकि द रीजन इज बिहाइंड दैट कॉम्पैक्टनेस। जब हम टैबुलर फॉर्मेट पे वर्क करते हैं तो देयर आई कैन से storing space is very very high as comparatively to the JSON format. In the JSON format it is working just like the horizontally, but अगर आप देखोगे it's working just like a vertically, एक टैबुलर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, JSON से कॉम्पैक्ट ज्यादा डेटा को कम स्पेस में ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो JSON डेटा जब भी आएगा तो वहां पे जो स्ट्रिंग आएंगी वो हमेशा डबल कोट्स में आएंगी, दैट्स व्हाई। तो इसलिए it's against your call if you are just used to yourself, maybe you are just making a, or if you do just practice for double quotes or single quotes, again it's your call, but मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे JSON पे वर्क करता हूँ, that's why मुझे आदत पड़ चुका है, ठीक है, I'm used to of these kind of things। तो ठीक है, मैंने कहा कि there's a string which is a collection of word hello world। अब यहाँ पे आप देख लो there's a hello, there's a space। अब ये आपके लिए स्पेस है, बट पाइथन के लिए क्या है, कैरेक्टर। So means it that if you're passing any character under the quotes, Python will recognize as a character. It is not kind of maybe space for you, but not for Python. Python will understand this is the character. So जब आप इसका indexing करने जाओगे, this is indexing 0, this is indexing 1, 2, 3, 4, ठीक है, and this is also 5। यानी Python इसको allocate करेगा इसका position, because ये Python के लिए character है। 6, 7, 8, 9 and 10। Got it? समझ में आया everyone how to do indexing? It is same just like we did in the list part. Everyone yes or no? It's simple. So ठीक है, मैंने कहा indexing, अब indexing कर लिया हमने, assign कर दिया, ठीक है, type देख सकते हो, there's a type of as you can call it, then is str, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे 5 इंडेक्स का चाहिए, अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स is space, then there is a space, got it। 9 there is a value, 10 there is a value, 11 there is a string out of range, यानी 11 इंडेक्स पे नहीं है जैसे लिस्ट में था। -1 again last one, and -11 is h, got it। Is there any doubt in this part of indexing, anyone? It's same just like we did it in the list part, got it, it's simple। Now come to the part which is forward slicing, again is same what we did in the last with the list। So 1 to 7 मुझे वैल्यूज दे देगा, ठीक है, कहां से, 0 से नहीं, 1 से शुरू होके 6 इंडेक्स तक, ठीक है। नॉट 5 पे क्या है, स्पेस 6 स्पेस w, 7 दे रहा हूं यानी n-1, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा सिंटेक्स लिख दिया है, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने लिस्ट में किया था, जंप और डायरेक्शन। ये क्या करेगा, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं देगा, 8 is -1, तो मुझे उसकी वैल्यू दे देगा, विच इज 0 to h, l is at 2, o is at 4 and w is at 6। तो वो क्या कर रहा है, 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसने स्पेस क्यों नहीं दिया, h, l, o के बाद स्पेस था, स्पेस क्यों नहीं दिया, ईच सेकंड एलिमेंट उठा रहा ना सर वो। डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, 0, 2, 4 एंड देन 6 और स्पेस 5 इंडेक्स पे था, गॉट इट। सिमिलरली मैं बैकवर्ड स्लाइसिंग कर सकता हूँ जैसे हमने लिस्ट में किया था, ठीक है। तो मैं उसे लिस्ट अपने स्ट्रिंग्स को रिवर्स भी कर सकता हूँ। -2 मीन से दैट मैंने -1 से शुरू किया, -1, -2 है ना, -1, -3, -5 पे नहीं जाऊंगा, विच इज -3, तो उसने मुझे वैल्यू दे दिया विच इज dr, गॉट इट। यानी लास्ट से शुरू हुआ d, l, r, o, ठीक है। तो d is at -1, l is at -2,
O is R is at -3. So that's why it's showing in line number once you see in the console part DR. Got it? It's all about the slicing. Everyone yes or no? किसी को इसमें doubt? Yes? No, sir. Okay, great. So now come to the part which is creating a string. यानी कैसे हम strings को create कर सकते हैं, ठीक है? तो there's a one way is a single word, ठीक है? मैंने single quotes में इसे पास किया and then print आपको पता है ये मेरी क्या कर रहा है, लॉजिक का आउटपुट दे रहा है। जो भी मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है हेलो, देयर इज अ रेफरेंस आईडी एंड बेसिस ऑन द रेफरेंस आईडी इट इज गिविंग दैट आउटपुट ऑफ माय लॉजिक, ठीक है? क्या आप पूरा एक फ्रेज भी दे सकते हो? देन डेफिनेटली यू कैन जस्ट पास अ फ्रेज, ठीक है? सो दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग। वी कैन आल्सो यूज डबल कोट्स, ठीक है? डबल कोट्स भी हम यूज कर सकते हैं, बट अगेन देयर इज अ अपॉस्ट्रोफी और मे बी इफ यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एब्रीविएशन। तो देखो मैंने क्या किया, आई एम हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? आई एम को यानी इन द डबल सॉरी जस्ट अपॉस्ट्रोफी काइंड ऑफ वे, तो मैंने इसे डबल कोट का हटा के सिंगल कोट कर दिया, ठीक है? अभी तक हम फ्रेज किस में लिख रहे थे, डबल कोट में, मैंने इसे सिंगल कोट कर दिया, ठीक है? नाउ आई जस्ट डिसाइड टू पास, तो ये मुझे बोला है इनवैलिड सिंटैक्स। मींस दैट अगर आपके स्ट्रिंग में कोई भी अपॉस्ट्रोफी सिंगल अपॉस्ट्रोफी आ रहा है तो मींस दैट यू हैव टू पास इनटू द डबल कोट्स। आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में उसे पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसे इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स मींस दैट कि आपने अपने स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया है, ठीक है? जैसे ये क्लोज हो जाएगा तो देखो ये डिफरेंट कलर में देगा, और जैसे ही मैंने इसे सिंगल कोट किया तो देखो इसने क्या किया, मुझे आई एम यूजिंग सिंगल कोट विद बट विल क्रिएट एन एरर। सो मीन्स दैट जो ये है ना, आई एम यूजिंग सिंगल कोट, ये ओपन हो गया है, यानी मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं या तो ये कर सकता हूँ, अब ये क्लोज हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसे देखो पास करूंगा इस स्ट्रिंग को, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बना के दे देगा एब्रीविएशन की जगह। बट मुझे क्या चाहिए था, नहीं मुझे तो एक अपॉस्ट्रोफी में चाहिए था कि जो आई एम वाला पार्ट है वो एक अपॉस्ट्रोफी में आ जाए, ठीक है? तो यानी मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मुझे डबल कोट्स में ही पास करना पड़ेगा, तभी वो उसे उसमें अपॉस्ट्रोफी में देगा। गॉट इट? तो देखो अभी शो कर रहा है कि आई एम यूजिंग सिंगल कोट। अगर आप देखोगे तो आपके पास आउटपुट आ रहा है आई एम यूजिंग सिंगल कोट, मींस दैट यू कैन यूज अपॉस्ट्रोफी अंडर द डबल कोट, यू कैन नॉट बी यूज अपॉस्ट्रोफी under the single quote. That's a limitation with the single quote also. Got it? So it's very, very simple. Similarly, now E part, you can do it also in the same way. It's simple. So let's suppose if you are just printing your strings, अभी हमने just print पे work किया था, there are some numerical values. If I want to just print my strings also by the help of print hello world, yes, you can do it also. Now there is a part which is backward slash n. Means that backward slash means n हमने देखा था last time, वो क्या करेगा, इसे सेग्रीगेट कर देगा, यानी हाउ आर यू को न्यू लाइन में वो प्रिंट करेगा। यानी अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, इस तरह से मैं उसे प्रिंट कर सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ कोई सेपरेटर नहीं दिया, कोई डिलिमिटर नहीं दिया। यानी सेपरेटर क्या करता था, अगर हेलो हाउ आर यू और हेलो वर्ल्ड 2 है, दो स्ट्रिंग है मेरे, जैसे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि इसने करा क्या। लेट्स सपोज मेरे पास ये है एंड देयर इज अ कॉमा, ठीक है? अब ये क्या है, सेपरेटर है, ठीक है? तो मैंने कहा ओके देयर इज अ सेपरेटर, और सेपरेटर को आप किस में करो, देयर इज अ न्यू लाइन। मैंने सिंपल ये कहा पहले, ओके पहले मैं इसे हटा देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। मैंने इसे प्रिंट किया तो कैसे है, हेलो वर्ल्ड 1 एंड हेलो वर्ल्ड 2, क्योंकि देयर इज अ सेपरेटर व्हिच इज कॉमा सेपरेटर। मैंने कहा नहीं मुझे सेपरेटर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सेपरेटर कैसे चाहिए, इट्स अ बैकवर्ड स्लैश एन, मुझे ये वाला सेपरेटर चाहिए। देन यू कैन सी हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड 2। यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें एक ही स्ट्रिंग्स को आपने दो पार्ट में बाइफरकेट किया और उसको ही नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दिया। गॉट इट? डिफरेंस समझ में आया एवरीवन? यस और नो? यस एवरीवन? ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देयर इज अ सेपरेटर, देयर इज अ डिलिमिटर। डिलिमिटर क्या करता है, अगर जो नेक्स्ट लाइन वाला जो आ रहा है प्रिंट होके मैं उसी लाइन में चाहता हूं तो एंड दे दूंगा। सेपरेटर मींस दो स्ट्रिंग्स उनके बीच में कॉमा है, वो कैसे प्रिंट कराना चाहता हूं। और अगर एक ही स्ट्रिंग है और उससे दो पार्ट में बाइफरकेट करके सेकंड स्ट्रिंग को न्यू लाइन में लेना चाहता हूं तो आई विल जस्ट पास न्यू लाइन। गॉट इट? सिंपल एवरीवन? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? जस्ट राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बोर्ड। Okay, great. So now come to the part which is also again different formatting.
it's very important. Let's suppose मेरे पास एक स्ट्रिंग है मोहित, मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ठीक है, तो मींस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मोहित इंटू 10, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देगा रिकर्सिवली। तो लेट्स सी ये क्या करेगा, मोहित 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 10 टाइम्स दे देगा, ठीक है। तो मींस दैट इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर स्ट्रिंग विद द सेम काइंड ऑफ वैल्यू, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग. It will give you answer recursively according to the value which you pass in your variable. Got it everyone? Yes or no? It's simple. So this is very simple part. Now come to the part which is again formatting. Let's suppose मुझे अभी अपना string क्या है, static होता है, कोट्स के अंदर दे दिया, बट आई वांट टू मेक माय स्ट्रिंग एज अ डायनेमिक वन, यानी मेरे पास जो आउटपुट है, प्लीज सेट टू म्यूट, मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, डायनेमिक क्रिएट करना चाहता हूँ. लेट्स सी, जैसे मैंने कहा ओके L equals to, not L, sorry, there's a name, and in the name let's suppose Anshita, okay, there's a name Anshita, and I say academic, there's another variable is academic, and postgraduate, okay, PG. This is just my string, and I'm passing that string, her name is Anshita, and she is doing PG. Simple. I just passing that string. तो डेफिनेटली अगर मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, her name is Anshita and she is doing post graduation from data science, let's suppose, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को ऐसे लिखना पड़ेगा ना, her name is Anshita and she is doing post graduate from data science, इस तरह का स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा. बट आई वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग एज अ डायनेमिक वन. लेट्स सपोज मेरे पास नेम है अभिषेक, नेम है मुस्कान, नेम है मेरे पास रितिका, नेम है पूजिता. तो मैं चाहता हूँ क्या ये क्या करे, जहाँ पे आ रहे ना हर नेम इज अंशिता, अंशिता की जगह फिर आ जाए अभिषेक, डेफिनेटली हर की जगह इस भी आएगा, ठीक है. तो नो नीड टू जस्ट ऑफेंड ऑफ दिस पार्ट, बट आई एम जस्ट गिविंग दैट सिंपल एग्जांपल. तो मैं क्या चाहता हूँ कि नेम चेंज होते जाए और उनका जो अकेडमिक का प्रोफेशन है वो चेंज होता जाए, यानी वो डायनामिक बनता जाए. तो डायनामिक कैसे बनेगा उसको समझते हैं. यानी देयर इज अ फॉर्मेट कमांड, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने कहा ओके देयर इज अ प्लैनेट अर्थ एंड द रेडियस इज 6800 किलोमीटर. मैंने प्रिंट किया द प्लैनेट. अब मैंने यहाँ पे प्लैनेट अर्थ नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर प्लैनेट जुपिटर करना चाहता हूँ तो जुपिटर पास कर दूंगा, मैं यहाँ पे जो करना चाहता हूँ वो पास कर दूंगा. तो मैंने कहा देयर इज अ प्लैनेट, दिस इज नोन एज प्लेस होल्डर. अब ये प्लेस होल्डर हमने एक और जगह पढ़ा था, कोई बताएगा वो प्लेस होल्डर क्या था, कहाँ पे हमने क्या पढ़ा था प्लेस होल्डर? एनीवन? यस, एनीवन? कोई बताएगा? मैं आपको बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा तो आपको याद आ जाएगा. अगर आपने नंबर्स ग्रेट, सो मीन्स दैट हमने वहां पे एक प्लेस होल्डर पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, ये वाला प्लेस होल्डर .2f, और हमने कहा था इसे क्या करो, f में वैल्यू दे दो. तो दिस इज द प्लेस होल्डर ऑफ द परसेंटाइल. सिमिलरली देयर इज अ प्लेस होल्डर ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस. यानी ये कर्ली ब्रेसेस क्या शो कर रहा है कि मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल्स को स्टोर कराना है. मैं क्या करना चाहता हूँ, द प्लैनेट अर्थ हैविंग रेडियस इज 6800 किलोमीटर. तो देखो डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स पास किए हैं. अब यहाँ पे मैंने कहा ठीक है प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसे पास किया. दिस इज रियली यूजफुल जब हम लूप्स करते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे तो अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा वन बाय वन, बट लूप्स में अंशिता है तो उसका नेम, हर नेम इज अंशिता. अभिषेक, लेट्स सपोज मैंने हर पे भी और हिज पे भी लगा दिया, अगर लड़के है तो डेफिनेटली हिज, और अगर लड़के तो हर. तो मैंने उस पे भी प्लेस होल्डर लगा दिया, तो हिज नेम इज अंशिता, हिज नेम सॉरी हर नेम इज अंशिता, हिज नेम इज अभिषेक. इस तरह से वो जाता जाएगा, हर नेम इज रितिका, हर नेम इज मुस्कान, हिज नेम इज स्वाधीन. तो वो इस तरह से क्या करे, प्लेस होल्डर करे, यानी अपने आप ही जाएगा, आइटरेट करेगा, ऑटोमेटिकली वहां फिल करता जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट कराता जाएगा, मुझे बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा. By the help of dot format, I can make my string as a dynamic one. तो मैंने कहा देखो नेम प्लैनेट अर्थ रेडियस 60, इसे प्रिंट करूंगा तो ये मुझे शो क्या कर रहा है, डॉट फॉर्मेट कमांड. क्या सिंपल, ये दिस वन, द प्लैनेट which is maybe
द प्लैनेट अर्थ हैविंग रेडियस इज 6800 किलोमीटर, ये मुझे ये प्रिंट कर रहा है। नाउ लेट्स सी, मैंने कहा ओके जुपिटर, ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है, आई हैव टू चेंज माय वेरिएबल वैल्यू, तो प्लैनेट जुपिटर हैविंग रेडियस 6800, सो दैट्स अ ब्यूटी, कैन यू वन बाय वन आइट्रेशन ले मेरे स्ट्रिंग्स को डायनामिक बनाता जाए, तो बाय जस्ट हेल्पिंग creating or just creating the placeholder into the string, I can do the same task. Got it? Concept समझ में आया? Concept is important. Dot format concept is that you want to make your string dynamic one, so you don't need to just change your strings maybe many times. You can just change your string just passing that for dot format command, and you have to just assign the variables, and just with the iteration your string will be dynamic. Got it everyone? समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. नाउ कम टू द पार्ट, अभी हमने देखा था बैकवर्ड स्लैश एन, वो क्या कर रहा था, न्यू लाइन, यानी अगर मैंने कहा था हेलो हाउ आर यू, तो हेलो इज इन द फर्स्ट लाइन, हाउ आर यू इज इन द न्यू लाइन। बट अगर आप कोई स्पेस चाहते हो विच इज अ टैब स्पेस, टैब स्पेस मींस दैट देयर इज अ 3 स्पेसेस, यानी ए स्पेस प्रेस स्पेस प्रेस स्पेस, अगर आप 3 टाइम्स स्पेस प्रेस करोगे तो विच इज इक्वल्स टू 1 टैब, तो यू कैन डू इट आल्सो दीस थिंग्स, this is a tab space, तो देखो hello nearby, there is a tab space, ठीक है, this is equals to 3 spaces between these hello and the nearby. These things are really not important especially for the coding part, but I'm just showing these things maybe in your interview, maybe in your, if you are just giving any kind of exam, then they can ask some kind of question, there's a silly kind of things, but I'm just showing to you, so definitely you can just connect with these things. Now the part is very very important जहाँ से अब शुरू होता है। So let's suppose there is a string is hello, I call it it's a hello, यानी मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, सॉरी अल्फाबेट्स हैं which is stored in the variable as, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन आस्क करना चाहता हूँ। इस, अच्छा इस कौन से टाइप का ऑपरेटर था, इस कौन से टाइप का ऑपरेटर था, क्या क्लासिफिकेशन था इसका, Identity. आइडेंटिटी, सो मीन्स दैट ये क्या करेगा, आइडेंटिटी यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ जो मेरा एस स्ट्रिंग है, यानी मेरा वेरिएबल एस है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है, क्या उसमें डिजिट है, मैं सिंपल इससे ये पूछ रहा हूँ क्या उसमें डिजिट है हेलो में, तो ये मुझे बता रहा है नो उसमें डिजिट नहीं है। मैंने कहा उसमें क्या अल्फा न्यूमेरिक, अभी इसे रन नहीं करता हूँ, पहले 69 को मैंने कहा क्या उसमें अल्फाबेट्स हैं, तो डेफिनेटली उसमें अल्फाबेट्स हैं। मैंने कहा इस लोअर है, लोअर मीन्स दैट सारे जो उसके अल्फाबेट्स हैं वो क्या सब लोअर हैं यानी स्मॉल हैं, तो ये क्या करे नहीं है क्योंकि देयर इज अ एच। मैंने कहा देयर इज अ टाइटल, अब टाइटल का फॉन्ट क्या होता है, जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टाइटल। मैंने पूछा कि ये टाइटल में है क्या, तो ये करे ओके ट्रू। मैंने कहा ये इसके सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या सब कैपिटल में है क्या इस अपर, ये कह रहे नो फॉल्स। मैंने कहा ये एंड होता है विद ओ से, सिंपल, ये फॉल्स कह रहा है, देयर इज अ केस सेंसिटिव, ओके। मैंने कहा कि ओ इससे, ओके ट्रू, कि ये स्टार्ट होता है ओ से, देयर इज अ फॉल्स। गॉट इट? कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे क्या हेल्प मिल रहा है और ये क्या मुझे बता रहा है, एनीवन, क्या कॉन्सेप्ट इससे मिलेगा आपको, क्या समझ में आया इससे, क्या समझ में आ रहा है? So we can use it in loops to check. ओके ओके, अब ठीक है, मेरे पास यानी अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसा डेटा है जिसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फीचर में क्या डिजिट्स हैं क्या, या पर्टिकुलर इस वैल्यू में कुछ नंबर्स हैं क्या, डेफिनेटली आई कैन डू, सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल स्पेशली इन केस ऑफ लूप्स। लेट्स सपोज ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसे और डायनामिक बनाते हैं, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, यानी देयर इज अ AW आल्सो 56 आल्सो, बिफोर दैट एक रह गया, ठीक है, मुझे इसको चेक करना है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मींस दैट कि इसके अंदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक हो तो वो आपको ट्रू दे देगा, तो ट्रू ऐसा हेलो अल्फाबेट्स है, ठीक है। मैंने कहा ओके 65, सिंपल, मेरे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, मैंने इसे चेक किया, ट्रू, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक, ठीक है। नाउ इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं,
AW, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैंने पूछा ये कि इसमें डिजिट्स हैं क्या, डेफिनेटली फॉल्स, के डिजिट्स नहीं है। मैं AW हटा दूंगा तो ये मुझे ट्रू दे देगा। गॉट इट। अल्फा न्यूमेरिक है क्या, हाँ अल्फा न्यूमेरिक है। क्या अल्फाबेट्स हैं क्या, नहीं है अल्फाबेट्स। गॉट इट, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे AW कर देता हूँ, ठीक है, तो सिंपली अगर मैं ऐसे कहता हूँ अल्फा न्यूमेरिक, डेफिनेटली टू। अगर मैंने कहा कि ये अल्फाबेट्स हैं क्या इसमें, फॉल्स, क्योंकि 65 भी है। डिजिट, अगेन आप डिजिट पे गए क्योंकि AW भी है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट वो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। गॉट इट एवरीवन, यस और नो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या मेरे पास डिजिट है, अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा है, लोअर है, 65 है, अपर है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा वो। गॉट इट, यस और नो। यस सर। तो दिस इज द पार्ट, आप इसे यूज कर सकते हो, तो ध्यान रखना है इसे। नाउ कम टू द क्वेश्चन के स्किल 65, लाइन नंबर 78, दिस इज स्किल 65, माय नेम इज 65। इसका क्या आंसर आएगा, माय STR इज अल्फा एंड माय नेम इज अल्फा न्यूमेरिक, क्या आंसर आएगा इसका। यस, इट्स सिंपल। आंसर क्या है जल्दी बताओ। ओके ग्रेट। फॉल्स एंड ट्रू, क्वेश्चन को समझो और उसका आंसर दो। लाइन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन नंबर 80। जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड क्या है, एंड क्या है, इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, यानी मेरे पास लॉजिकल फॉल्स, ऑपरेटर। फॉल्स एंड ट्रू है तो आंसर क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर सर। फॉल्स ट्रू और एंड फॉल्स। Answer should be फॉल्स, false. है ना। तो मीन से दैट मैंने इसे कहा ओके, इसे रन करो, इसे रन करो एंड इसे रन करो, इट्स आंसर इज फॉल्स, क्योंकि देयर इज अ वन ट्रू एंड देयर इज अ वन फॉल्स, एंड इफ यू आर यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर व्हिच इज एंड, so answer is false. Got it everyone, it's simple. Now come to the part which is string concatenate. Let's suppose जैसे हमने कहा 1 plus 2, can I do the same addition operator in the strings? Yes, but I call it as concatenate, यानी ईशांक प्लस 4, यानी ईशांक 4 दे देगा ये, ठीक है। इस तरह से आप concatenate कर सकते हो अपने स्ट्रिंग्स को। मैंने कहा अभी प्लस निर्व, मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो अभी प्लस निर्व आपके पास आ गया, देन ईशांक प्लस 4, ईशांक प्लस 4। और यू कैन डू, आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द STR। वेट, मैं आपको एक पहले एरर दिखा देता हूँ। मैंने कहा ओके मेरे पास स्ट्रिंग है एंड आई वांट टू ऐड न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज 4। क्या कह रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट STR टू STR नॉट इंट, क्योंकि जो आप वैल्यू दे रहे हो वो इंटीजर टाइप है, उसे आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते, यू हैव टू कंकैटिनेट STR टू STR, दैट्स व्हाई ईशांक 4, नाउ ईशांक 4, सॉरी। So you have to do this kind of ईशांक 4, you have to first convert। आप कैसे STR से कन्वर्ट कर सकते हो, या डेफिनेटली आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसे 4 से, इट्स सिंपल, आप उसे कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी देखा था विच इज म्यूटेबिलिटी, ठीक है, हमने म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा कि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट हियर, आप म्यूटेबल नहीं कर सकते। सो देयर इज अ एरर, मैंने कहा कि जीरो इंडेक्स पे जाओ, उसको वहां पे जीरो इंडेक्स पे ई है, उसे सब्स्टिट्यूट करके क्यू कर दो। STR ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी मुझे ये पता चला कैन ओनली कंकैटिनेट STR टू STR, एंड देन सेकंड एरर इज दैट STR ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो ये एरर मुझे पता चला। नाउ कम टू द पार्ट के कुछ फंक्शंस हैं इनबिल्ट, जैसे लिस्ट में थे ऐसे यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस हैं। तो एस है, देयर इज अ एस ईशांक 4, मैंने कहा इसे ओके फर्स्टली लोअर में कर दो, तो ये लोअर में आ गया, मैंने कहा इसे अपर में कर दो,
तो इसने अपर में कर दिया, मैंने कहा इसे टाइटल में चेंज कर दो, देन यू कैन डू इट इनटू द टाइटल आल्सो, देयर आर सम अपर एंड लोअर फंक्शन, तो यू कैन चेंज इन द टाइटल अपर एंड द लोअर थिंग्स। अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसे आप लोअर टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट स्प्लिट पार्ट। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस वन इज स्ट्रिंग एस हेलो वर्ल्ड एनाकोंडा। नाउ मैंने इसे क्या किया, रिवर्स किया स्ट्रिंग को, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। बट अगेन मैं इसे एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। तो रिवर्स आपको पता है, बट आई वांट टू स्प्लिट दैट स्ट्रिंग, कहाँ से जहां जहां स्पेस आ रहा है उसे स्प्लिट करना चाहता हूँ। और स्प्लिट करके क्या हो गए, हेलो वर्ल्ड और कॉन्डा करके मेरे पास 3 वर्ड्स बन जाएंगे, तो उसे एक कलेक्शन लिस्ट में वो दे देगा। तो लेट्स सी उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड एंड कॉन्डा, स्प्लिट किया कहाँ से, जहां से स्पेस आ रहा था। बट आपने कहा कि मुझे वहां से स्पेस सॉरी स्प्लिट नहीं करना जहां से स्पेस आता, जहां जहां ओ आ रहा है वहां से स्प्लिट करो। अब देखो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा दिस वन, ये बचा इसमें, फिर ये बचा एंड देन ये बचा, वो पार्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, देयर इज स्लाइसिंग अगेन काइंड ऑफ थिंग, उसी तरह ये वर्क कर रहा है। तो हेल डब्ल्यू स्पेस डब्ल्यू, ठीक है, एंड देन आर एल डी स्पेस सी एंड देन ए एन ए डी ए। गॉट इट एवरीवन, यस और नो? जब इसने स्प्लिट किया तो कितने पार्ट में स्प्लिट किया, 4 पार्ट में स्प्लिट किया। मैं कैसे ओ से स्प्लिट करो, लेकिन मुझे 4 पार्ट में स्प्लिट नहीं चाहिए, मुझे 3 पार्ट्स में स्प्लिट चाहिए। यानी मुझे 4 कलेक्शन दे रहा है ना, 0 1 2 3, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 3 कलेक्शन चाहिए। तो देखो वेयर इट इज 0 1 2 3, ओके 3 है अभी उसमें, सॉरी इंडेक्स, तो मुझे 2 इंडेक्स मुझे कलेक्शन चाहिए। तो ये जैसा पार्ट के मेरे पास 0 1 2 इंडेक्स आ गए, ठीक है। सिमिलरली आपने कहा कि मुझे मैक्सिमम स्पीड 1 इंडेक्स तक चाहिए, तो आपके पास 1 इंडेक्स आके विच इज 0 and 1। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट रेगुलेट योर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, यानी आपको स्प्लिट, आपने कहा कि मुझे स्प्लिट चाहिए, 1 स्प्लिट चाहिए, यानी जब 0 से लेट सपोज हेलो है वर्ल्ड, ठीक है, एंड देन कॉन्डा, आपने कहा मुझे 1 स्प्लिट चाहिए। तो 1 स्प्लिट जब आप यहाँ से एक ही स्प्लिट करोगे, ठीक है, तो हाँ आपको पास क्या आएगा, 2 इंडेक्स वैल्यू आएगा 0 1, यानी 1 इंडेक्स तक आएगा, यानी दिस इज ऑल अबाउट द 1 स्प्लिट। तो द दिस और दिस, तो आपके पास ये वैल्यू आ गया। आपने कहा कि मुझे स्प्लिट चाहिए 2, तो 2 मीन्स दैट आपने कहा कि एक स्प्लिट ये किया एंड देन एक स्प्लिट ये किया, तो अब 2 मीन्स 2 इंडेक्स का वैल्यू आ गया विच इज हेल स्पेस डब्ल्यू एंड देन उसके बाद ये वाला स्प्लिट आ गया विच इज आर एल डी सी ओ एन ए डी। गॉट इट? मैक्सिमम स्प्लिट का मतलब समझ में आया एवरीवन? और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो तो जहां पे वो स्पेस मिलेगा वो वहां पे स्प्लिट करके आपको दे देगा। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. इसी तरह अगर मेरे पास कोई और स्ट्रिंग है, दिस वन विच इज वैल हैश राइट अंडरस्कोर हैश, मे बी अगर मेरे पास कोई टैग स्ट्रिंग आता है जिसमें कोई हैश टैग है, तो डेफिनेटली आई कैन स्प्लिट फ्रॉम द हैश, तो मैं उसके अंदर के वर्ड्स को निकाल सकता हूँ। तो दिस इज वेल राइट एंड गुड, यानी हैश टैग के अंदर मेरे पास ये 3 वर्ड्स हैं विच इज वेल राइट एंड गुड, सॉरी गुड। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो। देयर आर 2 आल्सो। मैंने कहा ओके हेलो वर्ल्ड पे जाओ, ठीक है, नॉट दिस वन, यस हैश, ठीक है, हेलो वर्ल्ड पे जाओ और उसके अंदर देखो कि ओ का काउंट कितना है, तो दिस इज 3 काउंट। देन हमने वहां पे देखा था देयर इज अ इंडेक्स, यहाँ पे मुझे क्या है, मैंने कहा ओके हेलो वर्ल्ड पे जाओ और डी का मुझे इंडेक्स बता दो, तो इट टेल्स अबाउट 10, यानी किस पे है, आपके 10 इंडेक्स पे। मैंने कहा ओके ओ का इंडेक्स बता दो फिर मुझे, ठीक है, ओके, तो ये मुझे बता रहा है 4, यानी उसके बाद के जो ओ आ रहे हैं सेम इंडेक्स की तरह कर रहा है, शो नहीं कर रहा, बट देयर इज अ चेंज। मैंने कहा यहाँ पे मुझे जेड का इंडेक्स बता दो हेलो वर्ल्ड के अंदर। अगर मैं देखो एस को कॉल करता हूँ तो ये दिस इज हेलो वर्ल्ड कॉन्डा, मैंने कहा जेड का इंडेक्स बता दो। अभी ये जेड का इंडेक्स मुझे क्या कह रहा है, -1। नाउ कम टू द पार्ट विच इज डेटा, सॉरी दिस वन लिस्ट वन, एस इंडेक्स है, ठीक है, इसे कॉल करते हैं एल को, दिस वन, ठीक है, मेरे पास ये लिस्ट था, मैंने इसे देखा ओके एस का इंडेक्स बता दो, तो मुझे ये इंडेक्स बता रहा है 2। मैंने कहा ओके जेड का इंडेक्स बता दो,
मेरे लिस्ट में जेड नहीं है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जेड इज नॉट इन द लिस्ट। बट जब मैं स्ट्रिंज पे वर्क कर रहा हूँ और मैंने स्ट्रिंज पे उसके जेड का पूछा, तो ये मुझे -1 दिखा रहा है। ये -1 क्यों दिखा रहा है? एंड वेट, मैं यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। मैं इसे स्प्लिट कर रहा था ओ से, ठीक है। एस को दोबारा कॉल कर देता हूँ मैं, दिस इज माई एस हेलो वर्ल्ड। मैं इसे ओ से स्प्लिट कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है, हेल, यानी उसने एक स्प्लिट किया और मुझे 0 1 इंडेक्स की वैल्यू दे दी। लेट्स सी, मैंने कहा -1, ठीक है। एस को दोबारा कॉल करते हैं, दिस इज माई एस हेलो वर्ल्ड कॉन्टा, मैंने कहा -1। तो उसने जितने भी ओ थे वहां से स्प्लिट कर दिए, यानी मैंने इसे जब -1 वैल्यू दिया तो ये कुछ बता रहा है, यानी जितने भी ओ हैं सबको मुझे स्प्लिट करना है। और यहाँ पे मैंने जब स्ट्रिंज को जेड दिया तो ये मुझे -1 शो कर रहा है। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, क्यों कर रहा होगा ये -1? अच्छा, पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द स्ट्रिंग? इफ यू वांट टू फाइंड एनी एलिमेंट or if you want to find the index of element, then how to do it? In the list you have to call index, and in the string you have to call dot find. So by the help of these particular function respected to the data structure, you just call it and you will get the index of that particular element or the alphabet. But let's suppose if I'm just giving that element which is Jad, which is not present in my string whose name is as, which is hello world conda, then it is showing -1. But if I want to do the same task, especially in case of list, then वो मुझे error दे रहा है, that particular element is not in the list. Why this kind of maybe? Especially in case of list, why it is showing -1? Why it is not giving an error? ये -1 क्यों कर रहा है? जब मैं यहाँ पे मैक्सिमम स्प्लिट में -1 कर रहा हूँ तो वो सारे मेरे ओ को स्प्लिट कर दे रहा है, तो यहाँ पे -1 क्यों दे रहा है? इट्स रियली इंपॉर्टेंट। यस, एनीवन? यस प्लीज, यस। Sir, I think this is right or wrong. I don't know, sir. I am giving the answer. Actually, sir, the string we know that the collection of alphabets and the total alphabet is 26. Z is the last one. For that, it is showing that -1. वेयर जेड इज एट -1? है ही नहीं जेड कहीं भी। हेलो वर्ल्ड इज कॉनाडा, सॉरी, इज कॉनाडा, देयर इज अ वर्ड hello world, there is no jet in this particular string. Yes, anyone? क्यों दे रहा है -1? और डिफॉल्ट वैल्यू, ओके, ठीक है, समझते हैं इसे। और क्या, और कोई बताएगा मुझे क्या है ये? Why it is showing -1 or why it is giving -1? So I want to know the index of the value of, want to know index value of my element z, then why it is giving that -1? Anyone? डेफिनेटली ये क्या है, यानी मैं जब स्ट्रिंग पे -1 वैल्यू दे रहा हूँ, इट मीन्स मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उसका जो लॉजिक है उसे काइंड ऑफ फ्रीडम दे रहा हूँ। मीन्स कहीं भी ओ आए उसे स्प्लिट कर दो, यानी -1 गिविंग दैट फ्रीडम, स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रिंग, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो अगेन जब हम स्ट्रिंग पे जाते हैं, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो ये क्या करते हैं, इम्यूटेबल मींस दैट देयर इज नो सच काइंड ऑफ रूल व्हिच इज द सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे क्या नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो इसे ये पता है, ओके, ये इस पे गया, 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 इसने देखा लास्ट तक मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो जेड है
उसका जो वैल्यू है विच इज एट -1, लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वहां पे ये कहीं भी नहीं है. देयर इज नो वैल्यू ऑफ z विच इज प्रेजेंट, आई कैन से टिल -1 पोजीशन इन द रिवर्स ऑर्डर. यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक ये बता रहा है कि देयर इज नो सच वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन माई लिस्ट. बट लिस्ट के केस में देयर इज अ केस ऑफ अ म्यूटेबिलिटी. डेफिनेटली आई कैन पुट एनी वैल्यू, मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ z को कहीं भी. बट इफ आई जस्ट डिफाइन माई स्ट्रिंग, I don't have that kind of facility. I related to the substitution, which because strings are immutable, that's why it is showing that that particular value is not present till the index of -1 in the backward indexing. So that's why it's showing ये क्या है, -1 है. Got it? And you can say in a kind of layman term, it's a default value when you're just working on the find function and that particular alphabet is not present in the string, then your answer or your output will be coming at your console part is -1. Got it, everyone? So this is all about the string part. So today we have covered the list and the string, and on tomorrow we will do the rest of the data structure, which is set, dictionary, and tuples. Got it, everyone? Anyone having any doubt so far? You can ask any question. Yes. Are you able to connect with me? Yes or no? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? साउंड्स इंटरेस्टिंग और नॉट? कनेक्ट कर रहे हो? मजा आ रहा है कोडिंग करने में या नहीं आ रहा? या काइंड ऑफ मोनोटोनस लग रहा है, फीलिंग बोर काइंड ऑफ थिंग? No, sir, finding it interesting. ओके, एवरीवन, यस और नो? यस सर. क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा. ठीक है, आगे धीरे धीरे हमारा लेवल हाई होता जाएगा तो चीजें टफ होती जाएंगी थोड़ी थोड़ी. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये जो इजी पार्ट है उसको थोड़ा सा एंजॉय करो. मे बी नहीं कर पा रहे हो तो वो फिर आपका फॉल्ट है. Means I can say it is my fault also, but it's try to just maybe find some kind of entertainment because you are just learning new things. Definitely maybe you are just exploring new things, so definitely you just try to make some kind of fun in it. Got it, everyone? Everyone yes or no connect कर पा रहे हो? पहले मुझे अच्छा आंसर तो दे दो. नो है तो नो दो. Everyone? Yes. No need to just come over the podcast. Just write your answer in the chat board so I can easily connect with you. Everyone, just write down your answer, yes or no. Abhishek, yes. Okay, great, good. Muskan, yes. Okay. Pooja, okay. Pujita, okay. Swadhin, yes. Okay. What about rest? Ritika, yes. Okay, great. Anshita, what's your output? Siddhi. ठीक है, so the rest of the part we will do in the next class. ठीक है, तो हम कल एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे विच इज डिक्शनरी. डिक्शनरी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप JSON पे वर्क करोगे या NoSQL पे वर्क करोगे तो आपको डिक्शनरी फॉर्मेट पे मिलेगा. ठीक है, तो मैं आपको JSON पे वर्क करना सिखाऊंगा, कैसे JSON पे वर्क करा जाता है आगे आने वाली क्लासेस में. ठीक है, तो नो नीड टू वरी, जस्ट डू योर वर्क. ठीक है, ये कल हमारा क्लास डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएगा. आपके पास अगेन आपका असाइनमेंट आ जाएगा which is related to the data structures. Then in the next class, not next, means is the next week, we will using loops. ठीक है, okay everyone, bye and take care. Anyone having any doubt so far? Any doubt? नो सर. Okay, bye, take care.